So, very good morning to all of you. This is the first class of a new chapter, Company Analysis Forecasting the Future. Since this was also announced as a new batch or a new entry window, therefore, we also have a number of students for whom this may be the first class. It keeps on happening in the CFA batches because people decide to join at different points of time. So I am accustomed to it and I am matured enough to handle the same. So let me address especially the new joinees. When you think about a career in finance in future, there are two types of career that you can think about. One is inside out, the other is outside in. Inside out का मतलब है you become the finance manager of a company, a CFO or a CEO, and you are then applying your brains as to how to create value in the company. उस company का sales, उस company का profit, उस company का market cap को किस तरह से increase करें, applying strategies. एक होता है ये वाला. Second होता है outside in. You are an analyst or a fund manager working in a certain mutual fund, working in a certain private equity fund, in a PMS, in an alternate fund, and वहाँ पे you are analyzing various companies. And you have to find out the best company to recommend to your clients. Which company should we invest in? So you are looking at the company from the outside. So one is the inside perspective, you are running a company. The other is I am not running a company. Various companies are there. I am trying to look at which of them have better future prospects so that I can recommend my client to buy the stock. Now the CFA perspective is the second perspective. We are not planning a career to work in a company to create value. Instead, we are planning a career to work for a fund which will observe so many companies and decide which one to invest in. Although, अगर किसी के पास टाइम हो तो you can either using GPT or CFA site पे you can look at a pie chart as to what percentage of people work where, and you will find around 7 to 8% of CFAs also get employed in the inside in wala job. But I think that is not the typical target that we are planning for. The typical target is outside in. So we will be advising our clients on which stock to buy, which stock to sell. And for this, you have to forecast the future of the company. This chapter is about forecasting the future of the company. Okay? Company analysis past and present. Sorry, company analysis forecasting the future. ठीक है? Please get the perspective. कितने सारे कंपनीज हैं, उनमें से कौन सा स्टॉक रेकमेंड करे क्लाइंट को, उसके लिए हमें कंपनी का फ्यूचर जो है फोरकास्ट करना पड़ेगा. So that is the chapter, company analysis forecasting the future. There are two categories of students attending the class. Category 1, live class का बात कर रहा हूँ. So category 1 are those who are sitting face to face in front of me. Category 2 are those who are at home. Okay, doing the class at home. And within category 2 are two categories. One who are very vocal, who will write a lot, comments. Okay, and the other who are silent, who will just patiently listen and develop their own conclusions. उसके अलावा there is a very big category of students who are not doing the class live, who will do it on a pre-recorded mode. 15 मिनट सुनेंगे, फिर घूम के आएंगे, फिर वापस से 15 मिनट, and so on. कैसे न कैसे अपने को मोटिवेट करते रहेंगे, फास्ट करेंगे 1.5 स्पीड, नोट्स को लिखेंगे नहीं, नोट्स को प्री रिटन ले लेंगे, and so on. So everybody suits their own. ठीक है? Finally, people get a mixed culture जहाँ पे कुछ क्लासेस लाइव करते हैं और कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड में सुनते हैं. ठीक है? ओके. जिन लोग फर्स्ट क्लास ज्वाइन किए उन लोग को और भी दिक्कत है कि कितना टाइम लगेगा इस प्रोग्राम को करने में, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें, सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है? तो हाउ टू गो अबाउट, उसके बारे में रेगुलर मेरा वेबिनार होता रहता है
with students who have joined recently. So given that today many students have joined, मैं अलग से एक webinar भी ले लूँगा उनका जिसमें उनको guidance provide कर दूँगा. But the good thing about this chapter is that this chapter is very common sensical. इसमें कोई बहुत ज़्यादा base नहीं चाहिए. ठीक है? You have to forecast the future of a company. Company analysis, forecasting the future. ठीक है ना? एक चीज और बता दूं, CFA इंस्टीट्यूट का फ्रेमवर्क क्या चल रहा है. वो लोग देख रहे हैं कि जो लोग रैंडमली एक्सेल पे कंपनी का मॉडल बनाते हैं, आजकल भर भर के लिंक्डइन पे मिलेगा. ओके, यू विल फाइंड ए 20 पेज और 40 पेज का रिपोर्ट एक कंपनी के ऊपर आपके फ्रेंड ने बनाया है, एंड यू विल फील दैट यार वो तो वैसा कैलिबर का था नहीं, फ्रेंड कैसे बना लिया. ठीक है. एंड ही इज ऑल्सो डेवलप्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड एक्सेल शीट. उसमें गार्बेज इन गार्बेज आउट का प्रॉब्लम है. द स्टफ विच इज देयर इनसाइड द एक्सेल इज गार्बेज एंड देयरफॉर द आउटपुट इज ऑल्सो गार्बेज. उसका दम हो तो जो मॉडल बनाया वो अपना पैसा लगा दे उस स्टॉक में तो जान जाए. समझ गए? तो एक होता है चमकाना और एक होता है इतने इंटेग्रिटी से वैल्यूएशन करना कि आप खुद का पैसा लगा पाते. व्हाटएवर, ओके, इट माइट बी अ स्टॉक वर्थ 72 रुपीज. कैन यू पुट 720 इन इट एटलीस्ट? लेट्स सी. ठीक है. सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. दिस इज अ सीरियस बिजनेस. दिस इज नॉट अ लिंक्डइन में चमकाने वाला बिजनेस. एंड जो लोग ये समझते नहीं है उन लोग का करियर मीडियोकर होता है. ये नहीं बोलो करियर होता नहीं है, बट करियर इज मीडियोक्रिटी. सो देयरफॉर CFA इंस्टीट्यूट बोलता है एक्सेल चमकाने वाला पार्ट तो बाद में होगा, पहले हम लोग फंडामेंटली आपको बता दें कि कैसे फोरकास्ट किया जाता है. जिस तरह से राइटअप CFA इंस्टीट्यूट ने दिया है, कोई भी और जगह ऐसा राइटअप मौजूद नहीं है, गारंटीड. ठीक है. इट इज टॉप क्वालिटी गोल्ड स्टैंडर्ड राइटअप. ठीक है. दोज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर 10, 15, 20 years, they also are not accustomed to the type of write-up which is given. But वो जो 10-20 years experience हो उनमें बहुत सारे other positives है. They know about the industry company जो आप में नहीं है. तो आपका ड्रॉबैक क्या है कि आपको वो एक्सपोजर नहीं है. ठीक है. पर आपको बहुत सॉलिड बेस कंटेंट मिल रहा है. There is another chapter in FSA. ये तो इक्विटी वाला टॉपिक है. FSA में एक चैप्टर है कॉल्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग. फाइनेंशियल मॉडलिंग जिसमें ये लोग फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाया जाता है उसका बेस क्रिएट कर रहे हैं स्प्रेडशीट पे. बट है तो ये रिटन एग्जाम, मतलब मल्टीपल चॉइस एग्जाम, तो एक्सेल शीट तो आएगा नहीं. बट एक्सेल शीट एग्जाम माने रियल लाइफ में तो काम आएगा. तो बिकॉज ऑफ विच वी हैव द PSM, प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल, कि आप फिर PSM कर लो. तो नंबर 1 आपने यहाँ बेस बनाया, नंबर 2 स्प्रेडशीट क्या होता है, कैसे बनाते हैं वो आपने सीखा, और नंबर 3 एक्चुअली तो स्प्रेडशीट बनाना पड़ेगा. तो वो स्प्रेडशीट जो आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए PSM है, प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल. पर प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल का टेस्ट नहीं है. मतलब वेदर यू जस्ट डू इट सुपरफिशियली कि हाँ हो गया हो गया हो गया, और यू डू इट एक्चुअली, दोनों ही केस में योर रिजल्ट्स विल बी रिलीज्ड. और उस पर कोई मार्क्स नहीं है आपका. तो बिकॉज ऑफ विच प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल लोग ठीक से कर रहे नहीं है. समझ गए? तो CFA इंस्टीट्यूट का चीज समझना. ये चैप्टर एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग चैप्टर, कि जो बोले ना मेरे को तो आता ही नहीं यार स्प्रेडशीट क्या होता है, तो उसके लिए वो करा दी. उसके बाद एक्चुअल स्प्रेडशीट करना है तो PSM. एज एन इंस्टीट्यूट वी SSCI हम लोग चैप्टर को तो कितना डीपली कराते हैं, ये जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं इनको पता ही है, और आपको पता चल जाएगा जो लोग ज्वाइन किए. और PSM का सपोर्ट सेशंस YouTube पे डाल रखे हैं, PSM सपोर्ट सेशंस एक्सेल शीट वाला. ठीक है. वो सपोर्ट सेशंस है बिकॉज वो सपोर्ट सेशन है, इट इज नॉट अ प्रोग्राम. एक फुल फ्लेजेड प्रोग्राम, खासकर जिसमें गार्बेज इन गार्बेज आउट का इशू नहीं आए, जो मेन फोकस करे ऑन द क्वालिटी ऑफ द फोरकास्ट. बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड, किसी को भी अगर एक्सेल शीट वगैरह बनाना नहीं आता है तो बहुत बड़ी बात है, पर जिस किसी को बनाना आता है तो बड़ी बात नहीं है. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एक बार हैव अ लुक एट द कोर रीडिंग. ये चैप्टर का कोर रीडिंग का फर्स्ट पेज है. इट इज
अपने लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 7, ये लोग उसको लर्निंग मॉड्यूल बोलते हैं, अपने जो चैप्टर बोलते हैं ना, दे कॉल इट लर्निंग मॉड्यूल। तो इक्विटी में देर आर आई थिंक 8 लर्निंग मॉड्यूल्स, तो दिस इज द 7th वन, कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग। और इस लर्निंग मॉड्यूल के अंदर देर आर 5 लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स, आपको दिख रहे हैं? देर आर 5 लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स। लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स LOS कि इस चैप्टर में क्या क्या जानना है। लेट्स फोकस ऑन द 2nd, 3rd एंड 4th लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। सेकेंड वाला बोल रहा है हाउ डू यू फोरकास्ट अ कंपनीज रेवेन्यू। एक कंपनी सेल्स कितना करेगा ये आप कैसे फोरकास्ट करेंगे। से टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स का सेल्स क्या होने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ये कैसे फोरकास्ट करेंगे। सेकंड, हाउ डू यू फोरकास्ट अ कंपनीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड वर्किंग कैपिटल। खर्चा कैसे फोरकास्ट करेंगे, वर्किंग कैपिटल कैसे फोरकास्ट करेंगे। थर्ड है, मैं बीच का 3 LOS रीड कर रहा हूं, तो जो 4th वाला LOS है ऑन द स्क्रीन वो है हाउ डू यू फोरकास्ट अ कंपनीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी इन ऑर्डर फॉर द कंपनी टू मेक द सेल्स एंड ग्रो, कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी ये सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा आने वाले 5 सालों में, और उसका पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, इस पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, टेक योर टाइम, वंस अगेन लेट्स डाइजेस्ट। बीच का 3 LOS, कंपनी का रेवेन्यू फोरकास्ट कर रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट करना है, एंड कंपनी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फोरकास्ट करना है। ठीक है, टेक योर टाइम। सेल्स फोरकास्ट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट करना है, एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फोरकास्ट करना है। उसका अप्रोचेस, व्हाट आर द अप्रोचेस। तो ये मेन 3 LOS हो गया, और इनको इन्वेलप किया हुआ LOS नंबर A है और LOS नंबर E है। दो LOS इन्वेलपिंग LOS है। द फर्स्ट LOS इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस टू फोरकास्टिंग। प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस टू फोरकास्टिंग, अ कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजिशन। पोजिशन माने बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजिशन माने क्या हो गया, बैलेंस शीट, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स माने इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो दिस itself is, as you know, called 3 statement modeling. Are you able to forecast the company's income statement, cash flow statement and what, balance sheet? The 3 statement modeling that we talk about. ठीक है ना, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, अप्रोचेस क्या है, और लास्ट LOS क्या है, nobody is God, only God can forecast. तो ऑब्वियसली वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड बी हम्बल एंड ह्यूमन एंड अंडरस्टैंड दैट हमने जो फोरकास्ट किया है वो पक्का रॉन्ग है, शायद नहीं है, 100% पक्का रॉन्ग है। तो उस केस में शुड वी मेक अ सिंगल फोरकास्ट और सिनेरियोस। सिनेरियोस किसा, या तो ऐसा हो सकता है बेस्ट केस सिनेरियो, या फिर ऐसा हो सकता है बेस केस सिनेरियो, और या फिर ऐसा हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस, बेस केस, वर्स्ट केस, कम से कम ये 3 सिनेरियोस तो बनाए। ओके, सिनेरियोस। तो लास्ट वाला LOS है डिस्क्राइब द यूज ऑफ सिनेरियो एनालिसिस इन फोरकास्टिंग। इनफैक्ट जस्ट टू टेल यू दैट जिस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं उसमें आजकल 3 सिनेरियोस क्यों हो, व्हाई शुड देयर बी ओनली 3 सिनेरियोस, व्हाई कांट देयर बी इन्फिनिट सिनेरियोस। ये इन्फिनिट बोलने से डिफिकल्ट लगता है, ऐसे कैसे बनाएंगे हम इतना सारा, अरे द टूल्स आर देयर। एंड व्हेन यू गो फॉर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सिमुलेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड, सिमुलेशन, जिसका एक चैप्टर QM में है। कहां पे, QM में। देयर इज अ चैप्टर ऑन सिमुलेशन व्हिच रैंडमाइजेस एवरीथिंग। कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या होगा, आई थिंक, सुनना, the sales growth of the company will lie next year between 4% to 7%. Between what? 4% to 7%. And ये जब 4 to 7% के बीच में, is it uniform distribution? Uniform distribution का मतलब 4 से 7 के बीच में जो भी growth rate हो सकता है उस सबका equal probability है, uniform? No, 4 to 7 के बीच में it is going to be a normal distribution, bell shaped ऐसा,
4 का चांस कम है, 4.2 का चांस ज्यादा है, 4.4 का चांस ज्यादा है, 5 का चांस ज्यादा है, 5.5 का ज्यादा है, एंड ऑल दैट. उसके बाद 5.4 का 6 का कम है, 6 का कम है, 6.2 का कम है, एंड सो ऑन. मैं बोलना चाह रहा हूं बेल शेप्ड कर्व. ठीक है. और व्हाट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सुना तो होगा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो नॉट दैट उसका फॉर्मूला आना चाहिए, उसका कॉलम बनाना आना चाहिए, बट आपने सुना तो होगा. और ये अगर सुना भी नहीं है तो इन दैट केस शेप को देख के समझ में आ जाता है. ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये बोल रहे हैं कि 4 और 7 की तरफ का प्रोबेबिलिटी कम है, बीच का प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है. समझ गए. ये आप बोलना चाह रहे नहीं नहीं राइट साइड का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेफ्ट साइड का कम है. तो बोल तो सही, तेरे को क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक. तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है. वो डिस्ट्रीब्यूशन में से कौन सा ग्रोथ रेट नेक्स्ट ईयर होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन में से नेक्स्ट ईयर कौन सा ग्रोथ रेट होगा, इट डिपेंड्स ऑन लक. डिपेंड्स ऑन लक. लक माने रैंडम. तो इन दैट केस सिमुलेशन करता क्या है, सिमुलेशन बोलता है आप ये बता दीजिए ना 4 से 7 के बीच में होगा और क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप ये बता दीजिए. मैं उसमें लक से हाउजी खेल खेल के बता दूंगा ग्रोथ रेट क्या आएगा. बोल रहा मैं उसमें हाउजी प्ले कर लूंगा एंड आई टेल यू व्हाट ग्रोथ रेट आएगा. तो वो एक बार हाउजी खेलेगा तो एक बार वैल्यूएशन आएगा, दूसरे बार हाउजी तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम्स हो सकता है. दैट्स कॉल्ड सिमुलेशन. ये दिया हुआ नहीं है एलओएस में, बट आई एम ट्राइंग टू से अ सीरियस स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड ये सिनेरियो एनालिसिस गया जमाना. ठीक है. तो अभी सिमुलेशन का जमाना है, और खासकर बाय पीपल हु आर स्टडीइंग स्टैटिस्टिक्स आल्सो. व्हाई शुड दे कॉम्प्रोमाइज. ठीक है ना. The dean of valuation, that is Damodaran, okay, who's considered to be the god, and we are blessed by the fact and so confident about the fact that he's an Indian origin at the end of the day. So he finds out a distribution of valuation. He doesn't do scenario. Finds out a distribution. Anyways, तो आपको ये पांचों LOS समझ में आया. कंपनी का फोरकास्ट करना है 3 चीज, क्या, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. ये 3 एलओएस है बीच में. उनका अप्रोचेस आपको सिखाएगा. तो सर ये तो अप्रोच ही सिखाएगा, ये तो अपने को एक्चुअली करवाएगा नहीं. सर ये तो केवल अप्रोच ही सिखाएगा. ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बोला ये आपको अप्रोचेस सिखा रहा है इस चैप्टर में. स्प्रेडशीट वाले चैप्टर में बता रहा है स्प्रेडशीट पे कैसे करेंगे, और पीएसएम में सिखा रहा है करो. अंडरस्टूड. एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल टाइम ऑन दिस प्लैनेट देन टुडे where it is democratized, where it could be done by everybody, which means just at home, if you for example go on GPT and take a help from GPT के regarding particular company दो और उसका मेरे को ऐसे ऐसे करना है, कुछ ना कुछ आउटपुट आना चालू हो जाएगा, डिस्कशन will start. It was never ever possible. It is only possible now. Understood? That's the advantage of the era in which we are living. So you cannot be that much handicapped regarding सर आपने 2 घंटे में ये कराया था, मैं क्या करूं. There's too much of stuff that you can do. Okay, picking up anything that you want. Your father may be in a certain business, maybe. Okay, and your business, your father's business may be मतलब unlisted, private limited business जो है वो चल रहा है. But in the same business there could be public listed companies. वो जो public listed companies है, कौन से companies है, ठीक है. और वो companies के बारे में for example you can start seeing that उसमें क्या possibility है, उनका क्या PL account है, balance sheet है, कैसे उनका modeling हो, कैसे नहीं हो. Some interest or something has to be generated somewhere. ठीक है ना. ओके. तो ये आपको एलओएस पता चला. लेट्स बिगिन सम राइट अप सो दैट सम रिदम कम्स. ओके. तो ये LM7 है, कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग. यू आर ऑल्सो सपोज टू राइट. और ये LM7 का जो बैकग्राउंड है, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर राइटिंग. बैकग्राउंड ये है कि दिस इज the framework which the CFA Institute has brought about. सबसे पहले
they want that the student should carry out company analysis past and present. Company analysis past and present, that becomes step 1. अगर आपको फ्यूचर फोरकास्ट करना है तो आपको हिस्ट्री तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है. कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट. दिस वाज लर्निंग मॉड्यूल नंबर 5. लर्निंग मॉड्यूल 5. चीज समझो, पास्ट एंड प्रेजेंट. तो कंपनी का सब पास्ट और प्रेजेंट तो देखिए क्या कर रहा है, फ्यूचर तो बात का बात है. उसके बाद स्टेप 2, लर्निंग मॉड्यूल 6 इज इंडस्ट्री एनालिसिस. विच मीन्स कंपनी कौन से सेक्टर में, कौन से इंडस्ट्री में है. इज इट अ सीमेंट कंपनी? इज इट अ स्टील कंपनी? इज इट अ फार्मास्यूटिकल कंपनी? इज इट अ FMCG कंपनी? इज इट अ कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी? ओके, इंडस्ट्री जो है उसका एनालिसिस, बिकॉज देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज which are going to produce very high growth rate given the current circumstances, and they are going to have very high profitability. There are other industries जिनका growth rate कम होने वाला है और जिनका profitability कम होने वाला है. तो कंपनी किस इंडस्ट्री में है उसके बिना आप कैसे फोरकास्ट कर देंगे? अगर the average growth rate of the industry is going to be 7%, and profitability is going to be 15%, तो हो सकता है कंपनी बहुत बढ़िया चैंपियन प्लेयर है उस इंडस्ट्री में, उसका ग्रोथ रेट 7 के बदले 10 हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी 15 के बदले 20, 22, 25 हो जाएगा, बट 7 के बदले 70 तो नहीं हो सकता है, 15 के बदले इट कैन नॉट बी 80%. तो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू नो इंडस्ट्री क्या है, उसमें क्या प्लेयर्स है, क्या कॉम्पिटिशन है, क्या टर्फ है, क्या नहीं है, ठीक है. तो इंडस्ट्री एनालिसिस, दैट इज लर्निंग मॉड्यूल 6. And this one, step number 3, LM7, is company analysis forecasting. Company analysis forecasting. और पता होना चाहिए कि इसके बाद का जो चैप्टर है LM नंबर 8, वो है वैल्यूएशन. क्या है वो? वैल्यूएशन. कि तुमने फोरकास्ट कर दिया, सिनेरियोज हेन तेन सब, चलो अब कंपनी का वैल्यू निकालो कि शेयर का दाम क्या होना चाहिए. और वो जो शेयर का दाम क्या होना चाहिए, व्यू मे बी नोइंग, इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर. व्हाट इज इट कॉल्ड? इंट्रिंसिक वैल्यू. कंपेयर दैट विद द मार्केट प्राइस. इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, इश्यू अ बाय रिकमेंडेशन. If the market price is more than the intrinsic value, issue a sell recommendation. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए. सर क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू इश्यू अ बाय रिकमेंडेशन और सेल रिकमेंडेशन फॉर आवर क्लाइंट्स. मैंने जब ये लैंग्वेज बोला ना, बाय और सेल रिकमेंडेशन फॉर आवर क्लाइंट्स, तो मैं बात कर रहा था फ्रॉम अ सेल साइड पॉइंट ऑफ व्यू. कौन सा? सेल साइड. जो सेल साइड इंडस्ट्री है वो रिकमेंडेशन इशू करेगा, बिकॉज पैसा आपके पास है, आप डिसाइड करोगे बाई करना है कि नहीं करना है. इट्स योर मनी. या फिर आपने सुना होगा एक एग्जाम होता है RIA, सुने? रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का एग्जाम होता है सेबी का. तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन्वेस्टमेंट मैनेज नहीं कर रहा है, तुमसे पैसा नहीं ले रहा हूं मैं. तुम लोग मेरे क्लाइंट्स हो, मैं तुम लोगों से पैसा नहीं लिया हूं, मैं तुम लोग को एडवाइस करने वाला हूं, तुम लोग को क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, और तुम लोग मेरे को एडवाइजरी फीस पे करोगे. अंडरस्टूड? इफ यू फील दैट माय एडवाइस इज वर्थ, तो इन दैट केस यू विल पे मी एडवाइजरी फीस, बट मनी इज योर्स, तो आई विल इश्यू अ बाई सेल रिकमेंडेशन. ठीक है, वो गया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी. और सेल साइड क्या हो गया? ब्रोकरेज फर्म है, ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज. उसमें आप लोग क्लाइंट्स हैं जो उसके टर्मिनल को यूज करके ट्रेड करते हैं. तो वो ब्रोकरेज जो है ना, वो निकालता है रिपोर्ट के रिगार्डिंग ये वाला स्टॉक हम लोग के ख्याल से बाई करना चाहिए, और डिसेमिनेट करता है सब में. समझ गए? तब भी पैसा नहीं ले रहे आपका, आप डिसाइड करोगे.
और बाई साइड क्या हो गया? बाई साइड हो गया जहां पे आप लोगों ने पैसा मेरे को दे दिया है, तो आई एम अ म्यूचुअल फंड और आई एम अ पीएमएस और आई एम एन एआईएफ, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, और वो जो पैसा दे दिया है, अब मेरे यहां पे एक टीम ऑफ एनालिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो लोग इंटरनली रिसर्च करे कि ये स्टॉक बढ़िया है, और बोला बढ़िया है तो मैं अकॉर्डिंगली उस फंड से बाई कर लूंगा, आपका परमिशन नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? दैट्स द बाई साइड। ये बेसिक होता है इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग का। तो एनीवेज, बाई साइड सोचो या सेल साइड सोचो, अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि बाई करना है कि सेल करना है, ठीक है। और उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच इज एलएम नंबर 5, 6, 7 और 8। विच वन? Screen please. I said for the purpose of deciding whether to buy the stock or sell the stock, I have to find out the value of the stock which is LM number 5, 6, 7 or 8. Which one? 8. LM number 8. और वो चैप्टर में सबसे ज्यादा मजा आता है बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम खासकर ऐसा बना है कि जब नंबर्स की बात होती है, नंबर्स की, तो जाके मजा आता है। तो इन सब चैप्टर्स में ज्ञान ज्यादा है, नंबर्स कम है, ठीक है। LM8 में इट्स ऑल कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। कोई भी पर्सन को रिदम नहीं आ रहा है ना, CFA प्रोग्राम में रिदम नहीं आ रहा है, उसको LM नंबर 8 स्टार्ट कर देना चाहिए एंड रिदम सारा आ जाएगा, तो वो क्या बढ़िया लगने वाला है। ओके, बिकॉज इट्स ऑल डूइंग कैलकुलेशंस गिवन द फोरकास्ट। LM8 इज नॉट अबाउट फोरकास्टिंग, इट इज गिवन द फोरकास्ट, चल वैल्यूएशन करें। एंड हाउ टू जनरेट द फोरकास्ट आर दीज 3 चैप्टर्स। अंडरस्टूड? और जो इसके पहले का 4 चैप्टर्स है, LM 1, 2, 3, 4 इज, कोई स्टूडेंट है क्लास 12 पास आउट किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मैंने थर्ड सेमेस्टर में, बोलेगा मेरे को फ्रैंकली इससे ज्यादा इक्विटी मार्केट के बारे में पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट द इक्विटी मार्केट। थोड़ा बता तो देते कि प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, कैसे आईपीओ होता है, कैसे ट्रेडिंग होता है, किस तरह का ऑर्डर्स होता है, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्या इंटरमीडियरीज होते हैं, तो उसका एक चैप्टर दे दिया। कौन कौन से सिक्योरिटीज होते हैं उसका एक और चैप्टर दे दिया, प्रेफरेंस सिक्योरिटीज, कॉमन सिक्योरिटीज, वोटिंग राइट्स, नॉन वोटिंग राइट्स। उसके अलावा से ये जो निफ्टी, सेंसेक्स, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वगैरह होता है, इसका एक चैप्टर दे दिया कि आप वो नहीं बोलो। अंडरस्टूड? और एक चैप्टर ये दे दिया कि सर सच में बताइएगा, जब इतने करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में घुसे हुए हैं और एनालाइज कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है कि अपने पता लगा लेंगे एक ऐसा स्टॉक जो मल्टी बैगर होने वाला है, जो आज से 10 टाइम्स हो जाएगा 5 साल में। तुमने 100 करोड़ लगाया और वो हो जाएगा 1000 करोड़। सर ये पॉसिबल भी है क्या? होता है ना, बिकॉज अगर पॉसिबल है, मैं खोज लिया, तो बाकी लोग क्यों नहीं खोज पाए? बाकी लोग भी तो सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं। तो अगर सर ये पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों फालतू में अपने इतना मेहनत करें? तो एक मार्केट एफिशिएंसी वाला चैप्टर, विच चैप्टर? मार्केट एफिशिएंसी। दिस इज द इक्विटी का सिलेबस फॉर LM1, माने फॉर द CFA लेवल 1। ये इक्विटी का सिलेबस है। अंडरस्टूड? एनीबडी एकदम इंचेंटेड टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट, दिस इज द सिलेबस ऑफ इक्विटी फॉर CFA लेवल 1। ठीक है? और इन सब के लिए क्या इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए? ऑफ कोर्स। इकोनॉमी अगर बढ़िया नहीं करेगा तो कितने सारे सेक्टर्स खराब करने वाले हैं। जो सिक्लिकल सेक्टर्स है, कौन से? सिक्लिकल, दे विल बी बैडली अफेक्टेड द इकोनॉमी गोज डाउन। और जो डिफेंसिव सेक्टर्स है, लाइक यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, वाटर सप्लाई कंपनीज एंड योर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इकोनॉमी गोइंग डाउन। सो इकोनॉमी का फोरकास्ट तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, डेटा चाहिए तो स्टेटिस्टिक्स पढ़ा रहा है। सर मेरे को तो पता होना चाहिए ना इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसा होता है, इसके लिए FSA पढ़ा रहा है। दे आर द टूल्स। Understood? Look at the linkage. I mean, it becomes so easy in a 5-minute episode to understand how the CFA entire curriculum is designed. And once you become so rational, हाँ यार समझ में तो आ रहा है, and then accordingly you start exploring it, opening it out. ठीक है ना? Okay. So अपने LM नंबर 7 कर रहे हैं, कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग। कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग, ठीक है ना? Okay. इसमें नीचे चलते हैं, लिख देते हैं objective, issue, buy और sell recommendation, issue, buy और sell recommendation। तो buy recommendation मतलब P0 less than IB0,
सेल रिकमेंडेशन मतलब P0 ग्रेटर देन IV0। दोनों सिंबल्स शायद समझ में आ रहा होगा। P0 less than IV0. What is P0? Market price. What is IV0? Intrinsic value. What is intrinsic value? Should be price. दोनों ही तो प्राइस है, एक एक्चुअल प्राइस और एक है जो प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो बाय और सेल रिकमेंडेशन इशू करना है, उसके लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो अपने को ये चाहिए intrinsic value. Intrinsic value is the present value of future cash flows discounted at the required rate of return. Intrinsic value is the present value of the future cash flows discounted at the required rate of return. कोई भी चीज आप करते हो ना, इवन इफ यू डिसाइडेड टू ज्वाइन द CFA प्रोग्राम, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली यू डेफिनेटली थॉट कि ये प्रोग्राम करने से मेरा करियर कैसा बनेगा, कैसा जॉब मिलेगा, या अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर पाऊंगा क्या, इन्वेस्ट कर पाऊंगा क्या, क्या कैश फ्लोज आएगा। इट वॉज बेस्ड अपॉन कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर कैश फ्लोज एंड व्हाट इज द रिस्क ऑफ दोज कैश फ्लोज discounted at the required rate of return. Required rate of return is basically reflective of the risk in what you are doing. So intrinsic value is CF1 divided by 1 plus R plus CF2 divided by 1 plus R the whole square plus dot 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 to infinity. टू इन्फिनिटी मैंने लिखा है इसलिए बिकॉज इक्विटी में तो अपने मानते हैं कोई लाइफ नहीं है ना। इक्विटी इज द परपेचुअल एसेट क्लास, इट हैज नो लाइफ कि 10 years 5 years 7 years। सो देयरफॉर मैंने टू इन्फिनिटी लिखा कि जिंदगी भर जो कैश फ्लोज आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू करना है, और ये इंट्रिंसिक वैल्यू करने के लिए वी नीड forecast of cash flows in future along with an assessment of the risk involved. We need a forecast of cash flows in future along with an assessment of the risk involved. The cash flows in future, ये न्यूमरेटर हो गया, रिस्क इन्वॉल्व से निकलेगा R, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। समझे? अगर ज्यादा रिस्की है तो आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए या कम रिटर्न चाहिए? ज्यादा। कमती रिस्की है तो कमती रिटर्न चाहिए। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो डिस्काउंट रेट है, दैट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? रिस्क। और जो कैश फ्लोज है वो न्यूमरेटर में आपको दिख ही रहा है। तो वी रिक्वायर द कैश फ्लोज इन फ्यूचर एंड वी ऑल्सो रिक्वायर एन असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, एन असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। तो वी नीड अ फोरकास्ट ऑफ कैश फ्लोज इन फ्यूचर अलॉन्ग विद एन असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व से क्या निकलेगा? आर क्या था? द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, द डिस्काउंट रेट, कि मेरे को 18% चाहिए, इतना रिस्क है। तो अगर 180 आने वाले एक साल बाद, सॉरी 118 आने वाले एक साल बाद, तो मैं 118 डिवाइड बाय 1.18 100 रुपया दूंगा आज। इफ आई एम गोइंग टू गेट 118 आफ्टर 1 year, तो 118 डिवाइड बाय 1.18, आई एम रेडी टू पे 100 टुडे, बिकॉज तभी तो 100 प्लस 18% 118 होगा। ठीक है, तो हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर द कैश फ्लोज इज अ फंक्शन ऑफ आर। आर इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क, हायर द रिस्क हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो लास्ट लाइन लिख रहे हैं यहां पे, सो लेट्स फोरकास्ट। ओके, सो लेट्स फोरकास्ट। चैप्टर यही है, कंपनी एनालिसिस, फोरकास्टिंग द फ्यूचर। आई एम टेकिंग माई ओन टाइम, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ डाइवर्स ऑडियंस एंड अ पर्सपेक्टिव। एंड सबसे मेन तो यही होता है कि लोग चैप्टर कर लेते हैं पर पर्सपेक्टिव पता ही नहीं रहता है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं।
Where does it fit together? I've taken my time to explain the fitting of together, so that whether you are in the first class or whether you have been doing other topics and you are a little bit haphazard, पता नहीं क्या हो रहा है, so in that case you get a sense and stability. ठीक है ना? Okay. अब फुल स्क्रीन करना. काफी बार people like me डिग्रेड अकाउंटेंसी अ लॉट. अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं. वैसे तो डिग्रेड करने लायक भी है, ठीक है, पर करते हैं बिकॉज अकाउंट्स करके तो किसी का फ्यूचर हो लिया. ठीक है, इफ यू प्रिपेयर अकाउंट्स आई कांट सी हाउ कैन यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर. पीरियड गारंटीड. नो मैटर कितना ही मजा आता होगा बैलेंस शीट मिला के, बट एकेडमिक मजा अलग बात है. Practically, how can somebody earn lot as a result of being able to prepare accounts? I cannot understand that. Unimaginable for me. ठीक है, anyways. But let's understand that उसको जिसको मैं disrespect करता हूँ, that is the biggest raw material for the purpose of forecasting. That is the biggest raw material for the purpose of forecasting. यानी अपने कम से कम उसके तरफ gratefulness तो दिखाए, thank you. कि भाई आपने हमें एनुअल रिपोर्ट दिया जिसमें इनकम स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट था. ओके, सो दैट हमें कुछ आइडिया तो मिला कंपनी के बारे में. वो जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट था, और कंपनी क्या धंधा करता है, क्या माल बेचता है, किसको बेचता है, कितना बेचता है, कैसे बेचता है, क्या प्राइस पे बेचता है, वो सारा का सारा कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट में हुआ था. किसमें? कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट एक चैप्टर है जिसमें हुआ था. उसके बाद वो इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स कौन है, ये इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करने वाला है, कैसा किया है वगैरह, वो एलएम नंबर 6 में हुआ था. ओके, बहुत जन का एलएम 5 किया हुआ है, बहुत जन का नहीं किया हुआ है, बहुत जन का एलएम 6 किया हुआ है, बहुत जन का नहीं किया हुआ है. ठीक है, तो सर क्या वो दोनों चैप्टर एकदम पता होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग एलएम नंबर 7 अभी जो कर रहे हैं? नो, आप ऐसे भी कर लोगे, बट आइडियली स्पीकिंग आप ध्यान रखो कि वो दोनों लूप होल है. ओके, वो दोनों करना चाहिए. और मैंने एलएम नंबर 5 जो इस बैच में ही पढ़ाया था, दैट वाज वेरी वेरी डीपली टॉट. वो इसलिए यूट्यूब पे भी डाल दिया था, उसका 11 लेक्चर्स या कुछ था, वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे भी डाला हुआ है प्लेलिस्ट. ठीक है, वैसे अपने ऐप पे तो है ही, तो अकॉर्डिंगली साइड में वो स्टार्ट कर देंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज उसका रेपिटेशन अपने एलएम 7 में नहीं कर सकते. वी हैव टू डू न्यू स्टफ ओवर हियर. ठीक है ना? सो इन्होंने डिस्कस किया है एलओएस नंबर ए में, द फर्स्ट एलओएस में, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस ऑफ फोरकास्टिंग. उसके अंदर डिस्कस करना है व्हाट इज टू बी फोरकास्टेड, हाउ इज इट टू बी फोरकास्टेड, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज इट टू बी फोरकास्टेड. फिर से व्हाट इज टू बी फोरकास्टेड, हाउ इज इट टू बी फोरकास्टेड, एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स. बिकॉज मैंने तो इन्फिनिटी लिख दिया प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी. ये थोड़ी है कि अभी फोरकास्ट करेंगे HUL का 32 साल बाद क्या सेल्स होगा. दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू, नोबडी इज गोइंग टू डू. सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू डू इट फॉर 3 years, 4 years, 5 years, 7 years, 10 years मैक्स. तो कितने साल का फोरकास्ट करना है, और उसके बाद क्या फॉर्मूला लगाएंगे. वो फॉर्मूला जो लगाएंगे उसके बाद का, वो तो वैल्यूएशन है. क्या है वो? वैल्यूएशन. डोंट वरी अबाउट इट. पर यहां पे आप कितने साल का फोरकास्ट करेंगे, विच इज कॉल्ड द फोरकास्ट पीरियड और द हॉराइजन पीरियड. ठीक है, तो है. तो क्या फोरकास्ट करना है, कैसे फोरकास्ट करना है, कितने साल के लिए फोरकास्ट करना है, क्या फोरकास्ट करना है, इज कॉल्ड फोरकास्ट ऑब्जेक्ट. क्या? फोरकास्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ फोरकास्टिंग. कैसे फोरकास्ट करना है इज कॉल्ड अप्रोचेस ऑफ फोरकास्टिंग. कितने साल का फोरकास्ट करना है इज द हॉराइजन. तो ये 3 चीज का डिस्कशन है, और ये 3 चीज करते समय यू विल यूज सर्टेन प्रिंसिपल्स ना, कुछ उसूल तो होगा, वो प्रिंसिपल्स. ठीक है, सो दैट इज एलओएस नंबर ए. क्लियर? तो एलओएस ए में कुछ प्रिंसिपल्स है, और उसके बाद व्हाट इज टू बी फोरकास्टेड, क्या नाम है उसका? ऑब्जेक्ट्स. हाउ इज इट टू बी फोरकास्टेड? अप्रोचेस. एंड कितने साल के लिए फोरकास्ट करना है? हॉराइजन. ठीक है, दैट इज द कवरेज ऑफ एलओएस नंबर ए. लेट्स राइट डाउन. ओके,
chapter layout. Section 1. Overview. Section 2. Revenue forecasting. Section 3. Operating profitability. यानी किसका बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग इनकम EBIT और नेट इनकम पैट? ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चीज का बात हो रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT और नेट प्रॉफिट पैट EBIT, ठीक है। ऑपरेटिंग का दूसरा वर्ड होता है फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल नहीं, इंटरेस्ट क्या जा रहा है कंपनी का नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी EBIT, ठीक है, वहां का फोरकास्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट, कंपनी का डेटर्स कितना होने वाला है सर, क्रेडिटर्स कितना होने वाला है, इन्वेंट्री कितना होने वाला है, प्रीपेड कितना होने वाला है। सेक्शन 4, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फोरकास्टिंग। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फोरकास्टिंग। इन्वेस्टमेंट्स मतलब प्लांट मशीनरी, ये सब में कितना इन्वेस्ट करेंगे, और कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब उसका पैसा कहां से आएगा, डेट से या इक्विटी से। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ योर सेइंग दैट एक पार्ट समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आना चाहिए, अंदर किसी के नहीं गए हैं, बट ओवरऑल शुड बी क्लियर। सेक्शन 5, सिनेरियो एनालिसिस। रिमेंबर सिनेरियो, सिंगल फोरकास्ट नहीं कर सकते, आपको कम से कम मल्टीपल फोरकास्ट करना पड़ेगा। सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है। लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड। पहली बार अब एग्जांपल यूज कर रहा हूं क्लास में, अभी अपने को क्लास स्टार्ट किए हुए हाफ एन आवर हुआ है, ठीक है। मैंने लेआउट दे पाया, क्या है लेआउट, कॉन्टेक्स्ट सेट कर पाया, ठीक है, पर मैंने एग्जांपल ज्यादा यूज नहीं किया, बस प्रिवेंटिंग यूजिंग एनी न्यूमेरिक एनी एग्जांपल। तो लेट मी सेट द एग्जांपल, फुल स्क्रीन कर देना। तो एग्जांपल में टाइम लग सकता है बिकॉज जो उसको छुएंगे उसको ठीक से बोलेंगे। 2000 में IHCL इंडियन होटल्स ताज ग्रुप गॉट लिस्टेड समवेयर अराउंड 2000, क्या पता 2001 में हुआ होगा, इट गॉट लिस्टेड। IHCL ताज ग्रुप का बात कर रहे हैं। उस समय से लेके दिसंबर 2019 यानी मोटा मोटी 20 साल। इज इट ओके? आई यू ओके विथ मी? ताज ग्रुप का बात कर रहे हैं अपने। तो दिसंबर 2019 तक, इन 19-20 सालों में, इफ यू विल चेक, एंड यू शुड चेक आफ्टर द क्लास, एंड दिस शुड बी योर दिस थिंग, it provided a CAGR, a compounded average growth rate of share price of roughly around 2-3%। यानी किसी ने अगर शेयर बाई किया होता तो 2-3% पर एनम से शेयर का दाम बढ़ा उस पूरे सालों में। आई मे बी रॉन्ग एग्जैक्टली अबाउट द फिगर्स, ठीक है ना, बट यू अंडरस्टैंडिंग सब बोलना चाह रहे, बहुत कम बढ़ा, ठीक है। अचानक से कोविड हुआ, जैन फेब मार्च, सपोज अपने खड़े मई 2020 यानी मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दी है घर पे रहो, अपने अगल बगल में डेथ्स होना चालू हो गया है, ठीक है, वो पीरियड है। पोस्ट फैक्टो आज के दिन उसको इमेजिन करना बहुत आसान है, वो तो पता ही था सर ठीक हो जाएगा, बट उधर बैठ के जेन्युइनली कोई याद करे तो ये बोलना कि मई 2020 में डैम श्योर थे कि सब खत्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा और सब रिकवर हो जाएगा, रियलिस्टिकली स्पीकिंग यू विल नॉट बी ट्रूथफुल इफ यू से सो कि हमको तो पता ही था सर, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी दिस थिंग अफेयर। ट्रैवल एंड टूरिज्म वॉज हिट द मोस्ट, द लाइक्स ऑफ इंडिगो, द लाइक्स ऑफ IHCL, ITC होटल्स, ठीक है, दे वे हिट द मोस्ट। तो ये कंपनी जो IHCL है, जो 20 साल में कोविड के पहले कुछ उखाड़ नहीं पाया, और फिर कोविड में इसका क्या दयनीय स्थिति हुआ होगा, ये समझ में आ रहा है अपने को।
And where would the stock price would have gone as a result? To the extent that अगर मई 2020 में भी मई 2020 में अपने इमेजिन कर रहे हैं कि यू आर अ फैमिली ऑफिस, नाउ यू हैव टू टेक सम टाइम, फैमिली ऑफिस है, यानी ह्यूज फैमिली फंड्स एक्यूमुलेटेड ऑफ 1 लाख करोड़, एंड आपके पास एक मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज या आईसीआईसी सिक्योरिटीज आया है ये बोलने कि सर अच्छा अपॉर्चुनिटी है IHCL में, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, यू कैन टेक अ स्टेक इन IHCL। IHCL का उस समय मार्केट कैप हो गया था करीब 8,000 करोड़, कितना? 8,000 करोड़ इज द मार्केट कैप, यानी द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स दैट वर देयर, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू टेक से 1,000 करोड़ यानी 12.5% स्टेक इन इट। 1,000 करोड़ इज 12.5% ना, 1/8 आपको स्टेक लेने बोल रहा है। 1,000 करोड़ मामूली सा अमाउंट नहीं होते। आपको एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि रिगार्डिंग व्हाई शुड यू टेक द स्टेक, ठीक है, एंड यू हैव टू डिसाइड कि स्टेक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट फीलिंग जो आपके मन में आएगा कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोविड छोड़ो, ये तो कंपनी ऐसे भी डूबा हुआ ही था, आज तक कौन सा वैल्यू क्रिएट कर दिया है? हैज इट क्रिएटेड वैल्यू प्री कोविड? नो। तो जब आज तक की वैल्यू क्रिएट नहीं किया तो अब क्या कर देगा जब ऐसा स्थिति हो गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस केस में यहां पे इसलिए बोलते ना कि इक्विटी में जो लोग ग्रेड किए हैं, दे आर नॉट नेसेसरली दोज हु हैव ड्रॉन एक्सेल शीट्स, दे आर दोज हु हैव अंडरस्टूड कॉमन सेंस बिजनेस। ओके, नंबर्स डेफिनेटली हेल्प, बट वो करने के लिए तो एनालिस्ट लोग है ना, बट मेन सोच जो है, मेन सोच क्या होता है? सुनना। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू एक्नॉलेज दैट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, खासकर इंडियन मेंटालिटी तो, और इंडिया का खुद का जेंडर, कि जब when you are totally cornered and your survival comes into question, when you are totally cornered and survival existence comes into question, तभी वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, अदरवाइज वो लोग सुधरते नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? अगर इंडियन टीम T20 या ODI में 2-3 मैच पूरी तरह से हारेगा और मीडिया चेप चेप के गाली देगा, तो यू विल फाइंड दैट पता नहीं नेक्स्ट मैच में क्या हो जाता है। इट वॉज अ वेरी इजी एग्जाम्पल टू गिव। 1991 में जो आप लोग सब जन LPG पढ़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड सम पीपल से दैट क्या क्रिएट कर दिए, ओके, द लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, विद फुल रिस्पेक्ट टू हिम, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट ग्रेट करना था तो क्राइसिस के हुए बिना करते। द फैक्ट दैट कुछ बचा ही नहीं, यू डोंट हैव फॉरेक्स रिजर्व्स टू इंपोर्ट ऑयल फॉर मोर देन 3 months और 6 months, so you were so cornered कि ultimately something has to be done. So by that logic you understand that टाटा के बारे में अपने स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, कि टाटा को फोर्ड ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, ठीक है, जब वो क्या बोलते नैनो कार लेके गया था, हंसी उड़ाया था कि क्या गाड़ी बनाना आता नहीं तो क्यों बना रहे हैं। उसके बाद टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को अक्वायर किया और दिखाया, तो मजा आता है ये सब यूट्यूब वीडियोस, खासकर यूट्यूबर्स का जो कंटेंट सुन के। बट ये बात तो पक्का है कि टाटा ग्रुप हैज एक्टेड इमोशनली, इट हैज टू बी टेकन बाय फाइनेंशियल पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि टाटा ग्रुप हैज ऑफन एक्टेड इमोशनली, व्हिच इज नॉट अ प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन। दे हैव टेकन डेट of unsurmountable proportion for the purpose of acquiring Land Rover or Jaguar. They have taken debt of unsurmountable proportion in Tata in Tisco to acquire Chorus. Tata Steel ने Chorus को acquire किया, उल्टा पुल्टा डेट लेके, टाटा मोटर्स ने डेट लेके इसको acquire किया। तो ये सब ये तो मानना ही पड़ेगा। तो for such an emotional group, but which has been the pillar of stability and strength and concern towards all stakeholders, it remains to be very very difficult to imagine that एक टाटा ग्रुप का फ्लैगशिप कंपनी बंद हो जाएगा। होने को दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बट टाटा होटल बंद हो जाएगा, ताज ग्रुप बंद हो जाएगा, दैट बिकम्स समथिंग विच आपके कॉमन सेंसेस में आप समझ नहीं पाओगे कि नहीं यार होने देगा नहीं ये लोग, अब होना ही है तो होगा, तो फिर तो दुनिया ही लूट जाएगा। बट अदरवाइज दे विल नॉट लेट इट हैपन एंड दीज गाइज आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। मेरे को लगता है एज अ कॉमन सेंस बिजनेस पर्सन ये थॉट आना बहुत एक्सट्रीम नहीं है,
कि सर अभी आप बोल पा रहे हो, बट आई जेन्युइनली फील दैट ये थॉट उस समय बैठ के भी आ सकता था कि ठीक है ये लोग 2000 से 2019 तक कोई ग्रेट नहीं कर पाए, डिसेंट किए, होटल्स तो खुला ही है, ब्रांड है ही, वेल मेंटेन्ड है ही प्रॉपर्टी, उस तरह का हॉस्पिटैलिटी इन नो हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज अक्रॉस द ग्लोब हैव आई सीन माई सेल्फ। जिस तरह का हॉस्पिटैलिटी ताज ऑफर करता है वैसा हॉस्पिटैलिटी में तो कोई बराबरी कर नहीं पाएगा, नो ओबेरॉय नो नथिंग, ठीक है। तो they have held that hospitality, they held the brand, the type of hotel properties that Taj has in India, that is irreplaceable। होता है ना कि हम भी ऐसा कर देंगे, नहीं कर पाओगे, वो झील पे बना हुआ है, समझ गए, वो ऐसे ऐसे जगह बना हुआ है कि वो प्रॉपर्टी पॉसिबल ही नहीं है। तो 2016-17 करीब में इंडियन होटल सेक्टर को, सेक्टर बोल रहा हूं मैं, आईटीसी, ताज, इन सब को देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा बुद्धि आया। क्या बुद्धि आया कि भाई हम लोग इस बिजनेस को कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस क्यों कर रखे, हम लोग का तो काम है अपना ब्रांड दिखाना और होटल को मैनेज करना। हमारा ये काम थोड़ी है लैंड लेना गवर्नमेंट से या इससे, लैंड लेके लैंड को ठीक करना, सारा झमेला सल्टाना, प्रॉपर्टी डेवलप करना, कंस्ट्रक्शन करना। हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थोड़ी है। तो why are these brands getting into buying land and developing properties? Because उसपे तो पैसा ब्लॉक हो जा रहा है। When you talk about ROCE, return on capital employed, ROCE, नीचे में क्या आता है? Capital employed। तो इतना पैसा अगर आप प्रॉपर्टी में लगा दोगे तो डिनोमिनेटर के बोझ पे बेचारा न्यूमरेटर सह नहीं पाएगा ना। Are you understanding? तो the ROCE or call it ROI was pathetic, around 8-10%। कोई भी कंपनी जिसका ROI या ROCE is pathetic as compared to the return required by equity shareholders, वो कंपनी को शेयर मार्केट तो रिवॉर्ड करने वाला है नहीं, कस्टमर्स रिवॉर्ड कर देंगे। वही शेयर मार्केट के लोग जाके उसी के होटल में रहेंगे पर शेयर बाई नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर फाइनेंशियल्स। सो द मॉडल वाज फ्लॉड ना। व्हाई वुड यू बाय लैंड एंड प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग होटल बिजनेस? लैंड एंड प्रॉपर्टी बाय करना तो रीड्स का काम है। किसका? रीड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उनका काम है, ठीक है। दे शुड बी इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज, they have the funds and investors have given the money to invest. We should be giving our brand and managing the properties and earning some 10%, 20%, 30% cut on what the customer spends without investing money। समझो, पैसा लगाए बिना तो तुम जो स्पेंड कर रहे हो होटल्स में, उस 100 रुपया का 20 रुपया कट अगर टाटास को मिल रहा है डिनोमिनेटर में कुछ पैसा लगाए बिना, दैट इज गोइंग टू रियली स्केल अप ROCE। पीपल टॉक अबाउट ITC, और आईटीसी में नॉर्मली अपने सिगरेट का बात करते हैं, बट आईटीसी में भी सेम पीरियड में 2021-22 में जोर का टर्न अराउंड आया। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर द टर्न अराउंड वाज नॉट द सिगरेट बिजनेस, बट वाज द बिजनेस दैट आईटीसी आल्सो डेवलप्ड द सॉफ्ट मॉडल, द कैपिटल लाइट मॉडल, कि अपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब अगर है भी तो रीट्स को बेच देना चाहिए, कैपिटल तो फ्री हुआ, समझ गए, अपने मैनेज करेंगे प्रॉपर्टीज को। ये चीज 2016-17 से, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज, ठीक है, एकदम नींद में नहीं आए, बिकॉज मेरा भी फेस वैसा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये वाला चीज जो है 16-17 से समझ में आया इंडियन होटल सेक्टर को, जो कि ग्लोबली समझ में आ चुका था 2010-11 से ही। द लाइक्स ऑफ मैरियट एंड ऑल दैट, दे हैड वेंट इनटू दिस पाथ, ठीक है। तो वी लर्नड इट 5 years later एंड दे स्टार्टेड दिस फिनोमिनन कि अब अपने भी इस चीज में जाएंगे। तो 2016-17 में टाटा का जो AGM हुआ था IHCL का, उसमें इन्होंने एक गाइडेंस दिया था। गाइडेंस इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मैनेजमेंट गाइडेंस का मतलब होता है, जैसे मैं आप लोग को एक गाइडेंस दे रहा हूं, अपना सिलेबस ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा, सपोज मैं गाइडेंस दे रहा हूं, ये चैप्टर अपना इस समय तक कंप्लीट होगा, साथ में अपने ये चालू कर देंगे, फिर ये होगा, ये होगा। व्हाट इज दैट? अ गाइडेंस व्हिच आई एम गिविंग रिगार्डिंग हाउ द सिलेबस विल गेट कंप्लीटेड। वैसे ही मैनेजमेंट गाइडेंस देता है कि रिगार्डिंग वो लोग कैसे कैसे कैपिटल हैवी मॉडल से कैपिटल लाइट मॉडल में जाएगा। और उन्होंने गाइडेंस जो दिया था वो ये दिया था शायद कि 2016 में गाइडेंस दिया कि 2019-20 तक हम लोग का 40% या 50% बिजनेस रेवेन्यू विल कम फ्रॉम मैनेज्ड प्रॉपर्टीज, नॉट फ्रॉम ओन्ड प्रॉपर्टीज। फ्रॉम व्हाट? मैनेज्ड प्रॉपर्टीज, नॉट फ्रॉम ओन्ड प्रॉपर्टीज। हाउएवर इन दोस 3-4 years they were not able to do it. They were able to do it, मेरे को जितना याद है, only 20%। कितना?
बोला था 40, किया कितना 20। यहां पे एक डाउट होता है ऑन द एबिलिटी टू वॉक द टॉक। यानी मैंने बोला आज मैं LOS A कंप्लीट कर दूंगा, आज सपोज क्लास के स्टार्टिंग में, और मैं LOS A स्टार्ट भी नहीं कर पाया। You understood? I said I'll complete LOS A today, and suppose I was not able to start the LOS. ठीक है? However, the reason for that was also because अगर आप ये सब ट्रांजैक्शंस में हड़बड़ी करते हो ना, हड़बड़ी, तो बार्गेनिंग पावर आपके फेवर में होता है कि आपके अगेंस्ट में? अगेंस्ट में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। बार्गेनिंग पावर का सबसे मेन स्ट्रेंथ होता है टाइम। The fact that you can wait it out, the other party cannot. You can wait it out, the other party cannot. Impetuous होने से नहीं चलते। तो इसका मतलब when they contracted several property holders, जो लोग अपना अपना होटल चला रहे थे, ठीक है, आया राम गया राम, जो लोग होटल चला रहे थे, जब उनसे बात कर रहे टाटास कि भाई आपका प्रॉपर्टी ताज ब्रांड में चला लेते हैं, तो आया राम बोला क्या ताज, हम लोग भी तो ताज। यू अंडरस्टूड? तो वो निगोसिएशन बैठ रहा नहीं है, सही ना? तो वो केवल 2% देंगे, बिकॉज उस समय तक कल्चर नहीं आया था ना, ये आया राम गया राम में भी, ठीक है। तो और लोगों का भी डिमांड नहीं आया था, कंज्यूमर्स का, कि आया राम हो या ताज हो, ठीक है यार आधा पैसा चार्ज कर चलते ना आया राम में, लोगों का भी वैसा था। नाउ दिस एंटायर कल्चर वॉज चेंजिंग, द लव फॉर ब्रांड okay was changing, and the IRMs GAIRMs were also changing, and the fact that कैपिटल का बैकिंग किसके पास है? टाटा ग्रुप के पास कि आयराम के पास? टाटा ग्रुप के पास। तो इनका क्या हाल हुआ होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। बोले जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी प्लेयर्स है जिनके पास होटल प्रॉपर्टीज है, उनका कोविड में क्या हाल हुआ होगा, उनका तो लाइक पूरा ही गया ना। और अब जाके निगोशिएटिंग पावर हाथ में आएगा कि जहां पे जब जाके बात करेंगे उनसे तो बोलेगा हाँ हाँ कर लीजिए, कर लेते, बिकॉज यू अंडरस्टैंडिंग कि आपके नाम पे कस्टमर तो आएगा ना, हमारे नाम पे तो कस्टमर ही नहीं आ रहे। You understood? Then deals happen. Then deals happen. So, impetuously करना था तो 40% अचीव कर सकते थे, बट बहुत ही खराब टर्म्स में जहां पे कट मिलता 5%, 7% इंस्टेड ऑफ 10%, 12%. You understanding? So therefore नहीं किए उतना स्पीड से। एंड अब जब सर्वाइवल इज इन द क्वेश्चन, सो नाउ दे विल डू द सेम। तो शेयर का दाम 2 कारण से डाउन है, एक तो कारण कोविड है और एक तो ये ऑलरेडी डाउन था। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, हाउ मच? 8,000 करोड़। अब बात आ रहा है कोविड टेम्पररी होगा कि परमानेंट होगा, उसका कॉल। तो उसके तो एक ही तरीका है। नंबर 1 तरीका यह है कि पास्ट में कौन कौन सा पैंडेमिक हुआ है और वो पैंडेमिक कितने साल चला था पास्ट में। ऑफ कोर्स एवरी पैंडेमिक विल बी नेचर वाइज अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो देयर विल बी, ये भी बोल पाएंगे May 20 में बैठे हुए अपने एज एन एनालिस्ट ये बोलना कि देयर इज अ 0% चांस कि कोविड टेम्पररी होगा, ये तो गलत है। देवर टॉक्स अबाउट वैक्सीन दिस एंड दैट, ठीक है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी इज देयर, समबडी में असाइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% कि सर ये कोविड खत्म हो जाएगा। समबडी में असाइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 40%, बट समबडी सेइंग दैट नहीं सर ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को लगता है ये तो एकदम अनरियलिस्टिक है बोलना। 100% भी गलत है, बट 40-60% इज रीजनेबल इनफ। और कितने साल में होगा? यू कैन डिस्प्यूट 1 साल में वापस से चालू हो जाएगा, 2 साल में, 4-3 साल में। और होटल में जो स्टे करते हैं वो तो अपने ऑनलाइन स्टे नहीं कर सकते ना होटल में। ऑल्दो मार्क जकरबर्ग कोशिश कर रहे हैं मेटा वर्ल्ड से कि जहां पे मेटा वर्ल्ड बन जाएगा और तुम होटल में माने ग्लास पहन के ऐसे बैठ जाओगे, लगेगा तुम जकूजी में हो और जा रहे हो। पता नहीं ऐसा होना है क्या, होने को कुछ भी हो सकता है, बट इट इज नॉट थिंकेबल ओके कि ये हो पाएगा। इसका मतलब people who have been repressed staying at home and all that will ultimately explode, and this is a possibility. I'm not saying that yes होगा ही, but a possibility outcome है। और मान लेते नहीं होगा, एक बार मान लेते नहीं होगा, वर्स्ट माने ना, बिकॉज जब पैसा लग रहा है खुद का तो वर्स्ट मान के ही चलता है, और जिसमें वर्स्ट मान के चलने का दम है वही बंदा पैसा कमाता है, ठीक है। नहीं होगा मान लेते, तो उस केस में वो प्रॉपर्टीज का तो वैल्यू है। तो इन दैट केस आई थिंक JP Morgan और somebody has come out with a report जो टाटा प्रॉपर्टीज का रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाला था। व्हाट कॉस्ट? एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक होता है रियलाइजेबल वैल्यू। प्लीज दोनों वर्ड से समझें, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू। इंग्लिश आपके अंदर जा रहा है।
रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब अगर ऐसा होटल मैं आज के दिन बनाऊं तो क्या कॉस्ट लगेगा। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर मैं ये बेचूं तो क्या पैसा मिलेगा, दो अलग चीज है ना। विच वन गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ लिक्विडेशन, रियलाइजेबल वैल्यू गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ लिक्विडेशन। तो पहले रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाले अपने कि टाटा का जो जो प्रॉपर्टीज बना हुआ है उन प्रॉपर्टीज को रिप्लेस करने का क्या कॉस्ट है आज के डेट पे। एकदम रूम बाय रूम गया पूरा, लैंड कॉस्ट क्या, ठीक है, वो स्क्वायर फीट के बेस पे जो पैसा लगता है होटल का प्रॉपर्टीज उस लेवल का बनाने का कम से कम 45-50 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट। उसके अलावा उस पर फर्नीचर लगेगा, उसके अलावा अदर चीज लगेगा। तो ऐसे करके वैल्यूएशन किया, दे केम टू, और जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज है, ओके, मतलब आगरा में और जोधपुर वगैरह में वो तो कोई लिमिट नहीं है क्या वैल्यू उनका होना चाहिए। तो वैल्यू किया तो इन दैट केस वो वैल्यू आया करीबन 25,000 करोड़। हाउ मच? 25,000 करोड़। वैल्यूएशन का पूरा ब्रेकअप दिया हुआ, मेरा मन नहीं है ब्रेकअप ये सब दिखाने का, आई हैव इट ऑन द स्क्रीन बट आई डोंट वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन। 25,000 करोड़ का, ठीक है, 25,000 करोड़ तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। बट अपने ये बात करें कि नहीं सर अगर डिस्ट्रेस में सेल करना पड़ा टाटास को, ये बिजनेस चलने वाला ही नहीं है, सेल करना पड़ा तो कितने में सेल होगा। तो इन दैट केस होटल प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रेस में सेल होता है, जीपीटी को पूछे ना, परप्लेक्सिटी को, डीप एनालिसिस करो और बताओ कि जो जो होटल प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस में सेल हुआ वो कितने डिस्काउंट पे सेल हुआ है। 30%, 40%, 50%, 60% मान लो, कितने पे हो जाएगा। इवन इफ यू कंसिडर 60% डिस्काउंट पे सेल होगा तो भी 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ इंटू 0.4, 25,000 करोड़ इंटू, मैं 60% डिस्काउंट हटा के इंटू 0.4 बोल रहा हूं, तो 10,000 करोड़ तो लेवा दे डिस्ट्रेस में बिक जाएगा और 8,000 करोड़ पे आपको पूरा कंपनी मिल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस है। एंड अगर रिकवरी हो गया, फिर से ऑक्यूपेंसी बढ़ गया, सेल्स बढ़ गया, प्राइसिंग पावर बढ़ गया, ये लोग का ऑलरेडी सॉफ्ट मॉडल आने वाला है, कैपिटल लाइट मॉडल, देन यू कैन इमेजिन वैल्यूएशन क्या हो सकता है। एंड विद दिस अप्रोच अंडर कंसिडरेशन, ओके, द पर्सन हु हैज अर्नड the highest CAGR in a span of 35 years globally in the equity market, when you बोला globally मतलब Mr. Rakesh Jhunjhunwala, he invested in IHCL in May 2020. Okay, while investing he calculated intrinsic value. He doesn't do all those calculation. The particular sell side analyst had done the intrinsic value calculation जो इस चैप्टर में सिखा रहा है, ठीक है, कि ये intrinsic value हो जाएगा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 2-2.5 साल में उनका टारगेट आ गया था। वो जो टारगेट बोल रहा है IV0 आ गया था, डिड नॉट सेल। कारण कि when you buy something and you are holding it, the selling decision should not be a function of the target. Should not be a function of the target. It could be something that you see, but it's a function of whether the thesis is playing out, whether the thesis is breaking. Thesis कब ब्रेक होगा? थीसिस कब ब्रेक होगा? जब ब्रेक होगा जब कोविड में ऑक्यूपेंसी रेट, सेल्स बढ़ा ही नहीं, कोविड तब भी चल रहा है, तो आपको शायद बेच देना चाहिए। या फिर टाटा और इंडेटेड हो गया है, ये लोग होटल को चला ही नहीं पा रहे हैं, ये लोग कैपिटल लाइट में जा ही नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे 3-4 चीज डिफाइन कर सकते हैं कि सर ये हुआ तो हम बेच देंगे, जो रिकवर होगा बढ़िया। पर अगर थीसिस इज प्लेइंग आउट, आपने जो सोचा था वही प्ले आउट हो रहा है, लेट इट प्ले आउट ना। एंड अल्टीमेटली 2025 में, फ्रॉम 2020 से लेके 2025 माने I think the stock went up around 7-8 times, giving around 60% or 65% CAGR return, okay, on the IHCL. तो अपने जो बात कर रहे थे, आप स्क्रीन दिखाना। सेक्शन 5 सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब होता है ये कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा। मान लेते हैं कोविड होगा, दूर नहीं होगा, तो भी क्या होगा। तो मैं बोला हम बेचेंगे ना रियलाइजेबल वैल्यू लिक्विडेशन में, ठीक है। तो दैट वाज, माने उससे मेरे को ख्याल आया शेयर करने का IHCL वाला पार्ट। अंडरस्टूड कि सिनेरियो एनालिसिस, इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट वर्स्ट कैन हैपन स्पेशली इन क्राइसिस। दिस एग्जांपल व्हिच आई गिव यू इज एन एग्जांपल ऑफ क्राइसिस इन्वेस्टिंग। व्हाट? क्राइसिस इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। क्राइसिस इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। क्राइसिस इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट ये बोलता है कि जब भी क्राइसिस आए,
इट कुड बी एन इकोनॉमी वाइड क्राइसिस, अ ह्यूमन क्राइसिस, और इट कुड बी अ सेक्टोरल क्राइसिस। एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है, बहुत जोर का प्रॉब्लम। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, इज दैट क्राइसिस टेम्पररी और परमानेंट? नंबर 2, इज दैट पर्टिकुलर बिजनेस जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी? If you invest in a high quality business in a crisis which according to you is temporary, high quality business in a crisis which according to you is temporary, that is called crisis investing. ठीक है? तो where does the judgment lie? The judgment lie कि जब वो crisis आ रखा होगा, there will be negativity all across. Can you hold your sanity? While at the same time you've heard a story from me crisis investing का, and you don't have an experience, and therefore next time as soon as a crisis comes you start jumping, crisis investing. You got to also prevent the other thing, everything is not touchable. How to explain? Let me give an analogy. एक बंदा बीमार पड़ा, हॉस्पिटलाइज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। अब बात आ रहा है सर वो उठेगा क्या, वो उठेगा क्या या गया? तो इन दैट, और अपने उस पर स्टेक लेने वाले हैं, उस बंदे पे अपने 20% स्टेक लेने वाले हैं, मतलब उसका जो भी कमाई अपना फ्यूचर का, ठीक है? तो एक तो पॉइंट आता है कि सिंस वो बीमार हो गया है और हॉस्पिटल में आ गया है, तो उसका जो स्टेक मिल रहा होगा अपने को बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहा होगा, नो डाउट, पैसे का दरकार है उसको, तो ये अपने फेवर में है। अब उठेगा क्या या नहीं उठेगा, इस पे 2 केसेस है। पहला केस है वो बंदा ऐसे भी बेकार है, कमाता नहीं है, तो उठ भी गया तो वो कोई ग्रेट नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है अगर वो उठ गया तो फाड़ देगा, अपने बात करें, अगर वो उठ गया तो फाड़ देगा, और वो प्लस वो क्या मेडिसिन हुआ है क्या नहीं हुआ है क्या उठेगा, वो एक अलग डिसीजन। सेकंड वाला बोले एक बार कि सर वो उठेगा ये मेरे को लग रहा है, पर वो बंदा ही बेकार है, उसमें ट्रेडिंग डिसीजन। व्हाट डिसीजन? ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म माने डेली नहीं बोल रहे, अभी क्लास के पहले मैंने बाई किया था, क्लास के बाद सेल, मैं बोलना चाह रहा हूं 3-6 महीने का ट्रेडिंग कॉल होता है, करते हैं ये 3-6 महीने का डिसीजन लिया जाता है ये थीसिस पे कि ये हमको पता है इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना, ये लायक नहीं है लॉन्ग टर्म होल्ड करने के, पर अगर ये उठ गया तो एक बार तो इसका दाम सुधर जाएगा, तो वी टेक अ ट्रेडिंग कॉल इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्सन ट्रेडिंग का मतलब होता है 3-6 महीने 9 महीने का कॉल। इफ द थीसिस वर्क्स आउट वेल एंड गुड, डजंट वर्क आउट। जब मैंने पहले ये चैप्टर पढ़ाया था, पहले लास्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ाया था मे बी 2023 या 24 के टाइम पे, तो उस समय मैंने वहां पे एग्जाम्पल जो लिया था ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी वाज HT मीडिया। विच एग्जाम्पल? HT मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स प्रिंट मीडिया, ठीक है? एंड मैंने बोला था कि इलेक्शन आने वाला, इलेक्शन कब हुआ था मोदी जी वाला? 24, हाँ, तो वी वर स्टैंडिंग समवेयर ऑन डिसम्बर जैन, तो आई कुड सी दैट स्टफ है HT मीडिया में, बट नॉट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई सेड बिकॉज इलेक्शन आने वाले वगैरह, इट कैन टर्न आउट टू बी अ गुड ट्रेडिंग प्ले। तो सम एक्सटेंट इट डिड टर्न आउट। दाम याद नहीं आ रहा, अभी 30-35 का था, मैं भी अब 30-35 के दाम में तो 5-7-10 रुपया भी ऊपर चला गया तो ग्रेट है ना, यू कैन अंडरस्टैंड। 30-35 के दाम में अगर 5-7-10 रुपये बहुत बड़ा दाम है, बट अल्टीमेटली द थीसिस डिड नॉट प्ले आउट। मेरा इन्वेस्टमेंट का half of the holding I sold at a profit and half I sold at a loss in HT मीडिया। मैं ट्रेडिंग वाइज बता रहा हूं, अंडरस्टूड? तो ट्रेडिंग वाइज भी होता है वो उस केस में कि ऐसा गड़बड़ है पर ये उठेगा, पर ये इस पे दम है ही नहीं, तो मे भी अपने ट्रेडिंग वाइज कॉल ले लेते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला कि मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, आई डोंट नो हाउ मेनी मिनट्स आई विल से, बट देन दीज थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट स्पेशली ऑन बिगिनर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ टू थिंक एंड हाउ टू इवैल्यूएट, ठीक है ना? ओके, कम बैक टू द स्क्रीन। तो दिस वाज चैप्टर लेआउट। ये 5 सेक्शन है, ये 5 LOS है। अपने आते हैं सेक्शन 1 LOS A में। ओके, LOS A ओवरव्यू, इस चैप्टर का ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में
एक पार्ट हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ फोरकास्टिंग, सेकेंड है फोरकास्ट ऑब्जेक्ट्स, थर्ड है फोरकास्ट अप्रोचेस, फोर्थ है फोरकास्ट हॉराइजन। प्रिंसिपल्स, फोरकास्ट ऑब्जेक्ट्स, फोरकास्ट अप्रोचेस, फोरकास्ट हॉराइजन। ठीक है, स्क्रीन हटा लो। प्रिंसिपल्स में केवल दो चीजें लोग बताए हैं। पहला चीज ये है कि प्लीज कीप योर फोरकास्ट पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है सिंपल। तो सर इतना लंबा चौड़ा वर्ड क्यों बोले सिंपल के बदले? एक्चुअली सिंपल कभी कभी अदरवाइज लिया जा सकता है। मैंने पार्सिमोनियस एग्जैक्टली सिंपल नहीं होता है, वो ये होता है कि अगर आप कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो ना कहीं कोई चीज में, इफ यू आर डूइंग अ कॉम्प्लिकेशन इट शुड जस्टिफाई, और उसका फायदा होना चाहिए कॉम्प्लिकेशन का। अगर द इंक्रीमेंटल बेनिफिट एज अ रिजल्ट ऑफ डिगिंग डीप इज नॉट ग्रेट, डोंट डिग डीप एंड डोंट कॉम्प्लिकेट दिस अफेयर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जब अपने CFA प्रोग्राम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करते हैं TVM, तो उसमें बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट का 3 कंपोनेंट्स है। इंटरेस्ट रेट का 3 कंपोनेंट है। वन इज रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट यू रिक्वायर फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। सेकेंड होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम, थर्ड होता है रिस्क प्रीमियम। अब इन तीनों को ऐड करें या इनको मल्टीप्लाई करें फैक्टर वाइज, तो एक्यूरेसी बोलता है इनको फैक्टर वाइज मल्टीप्लाई करना चाहिए। 1.02 इंटू 1.05 इंटू 1.03 माइनस 1, वही करेक्ट है। बट सिंपल क्या होता है, 2% रियल है, 5% इन्फ्लेशन है, 2 + 5 क्या 7। इट वर्क्स बिकॉज अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 5 का फैक्टर को तो 7.1 आता। क्या आता? 7.1। पर आपने 2 + 5 7 किया तो 7 आ गया। इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस 7 विल वर्क इंस्टेड ऑफ 7.1। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस दे वोंट, इट मैटर्स अ लॉट। तो अकॉर्डिंगली CFA इंस्टीट्यूट ज्यादातर एडिटिव प्रिंसिपल एडवाइस कर रखा है। कौन सा प्रिंसिपल? एडिटिव। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्सिमोनियस। व्हाट? पार्सिमोनियस। तुम्हारा जो लेट्स अज्यूम दैट यू आर अपीयरिंग फॉर एन एग्जाम, ठीक है, CFA एग्जाम में तो स्कोर होता ही है। योर स्कोर इज Y। स्कोर इज व्हाट? Y। इट्स अ फंक्शन ऑफ हाउ मेनी आवर्स ऑफ लेक्चर यू अटेंड, करेक्ट? It's a function of how many questions you solve in class. It's a function of how many questions you solve individually at home. It's a function of how many mock tests you give. तो ये X1, X2, X3, X4 फैक्टर्स हो गया। अब बोलते जाए तो और भी बात आएगा, सर इट डिपेंड्स अपॉन मेरा मूड, इट डिपेंड्स अपॉन मेरा रिलेशनशिप स्टेटस, इट डिपेंड्स अपॉन दिस, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। मैंने बोलते जाए तो आदमी लिमिट नहीं है। अगर क्रिएटिविटी 4-5 फ्रेंड बैठे रहे और खुला बात हो रहा है तो खुला बात में क्या क्या फैक्टर निकल जाए, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब वो X1, X2, X3 और सब चीज को मैथमेटाइज करना पॉसिबल है। वैसे आपको लगा अगर मूड को मैथमेटाइज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सब चीज को न्यूमेरिकल करना पॉसिबल है। मूड में बोलेंगे क्या, या तो गुड मूड या बैड मूड, तो गुड हो गया 1, बैड हो गया 0, बाइनरी। तो जब जब तुम्हारा गुड मूड था तुम्हारा क्या स्कोर आता है, बैड मूड था तो क्या स्कोर आता है, उसको रिपोर्ट कर लेंगे ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब स्टैट्स हैंडल कर सकते हैं। तो कितना फैक्टर्स लोगे यार, जानते हैं मैंने 50 फैक्टर का मॉडल बनाया है। भाई मत बना, जो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको लेके मॉडल बनाना। बट सर 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर पूरा समझा नहीं पाएंगे स्कोर को। कितना समझा पाएंगे? 75-80% हो गया, 20% नहीं समझाना है, लीव इट ऑन लक। तो दैट्स कॉल्ड पार्सिमोनियस। तो मॉडल को अनड्यूली कॉम्प्लिकेट मत करो। हाँ, पर अनड्यूली कॉम्प्लिकेटेड मॉडल अगर लिंक्डइन में दिखाओगे ना तो बोलेगा बाप रे किया है। चमकाने में बहुत मजा आता है अनड्यूली कॉम्प्लिकेटेड मॉडल। ठीक है, कोई का फैक्ट बुक है तो ये तो आता है। अभी जो आया था जेन स्ट्रीट,
तो जेन स्ट्रीट का जो रिपोर्ट निकाला था, जेन स्ट्रीट वाज अ हेज फंड कंपनी, okay, which did a unscrupulous activity in the Indian derivative market. So SEBI brought out a report. Everybody who wrote about that report on Twitter or whatever they said, it is a इतना पेज रिपोर्ट. अभी भी वही इंडियन मेंटालिटी से ग्रसित है जो अपने एग्जाम में होता है ना, कितना पेज लिख के आया तुम. अंडरस्टूड? तो ये लोग चाह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड फालतू में मत करो. अगर वो कॉम्प्लिकेट करने से बहुत इंक्रीमेंटल फायदा हो रहा है तो करो, वरना मेंटेन सिंप्लिसिटी. ठीक है? यू नो अबाउट द पेरेटो प्रिंसिपल? पेरेटो प्रिंसिपल किसी ने सुना है? बहुत सरप्राइजिंग है, नहीं सुना है आप लोग तो, ज्यादा यूट्यूब हिंद सुनते रहते हो. पेरेटो प्रिंसिपल मतलब होता है अपने जो काम करते हैं ना, अपने काम, अपने लोग जो लाइफ में काम करते हैं उसमें से 80% काम का मार्जिनली कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है, पर 20% काम का फायदा होता है. अगर अपना ये माइंडसेट बैठ जाए कि अपने 20% चीजों पे ध्यान देंगे, ओके, जहां स्कोप रहेगा कि यार ये वाले चीज पे ध्यान देंगे, यहां से फायदा है, दैट इज पेरेटो प्रिंसिपल. ठीक है? बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसमें जा रहे हैं. ओके, एनीवेज, तो एक है पार्सिमोनियस, कीप इट सिंपल, और दूसरा है, सुनना प्लीज, एग्जांपल से बोल रहा हूं. एक कंपनी जो है उसका तुम रिसर्च कर रहे, रिपोर्ट बना रहे, उसी समय अचानक से किसी एजेंसी ने, ओके, यूनेस्को ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाला उस सेक्टर पे, उस समय जब तुम बना रहा था. तुमको तो मजा आ गया, क्या यार इस रिपोर्ट का स्टफ लेके मैं बढ़िया से एनालिसिस कर पाऊंगा. पर वो रिपोर्ट रेगुलरली निकलने वाला नहीं है. तो एक बार तो आप यूज कर लोगे, फिर जब आपको अपडेट करना होगा ना, आप यूज नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट रेगुलरली. डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. तो आप वैसा चीज पे मत जाओ जो चीज रेगुलरली आपके पास डिस्क्लोज नहीं होगा. ट्राई टू फोरकास्ट दैट. यानी मैं यहां बात कर रहा हूं फोरकास्ट ऑब्जेक्ट. फोरकास्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या फोरकास्ट करें? जवाब दे. आप वो फोरकास्ट करो जो कि रेगुलरली डिस्क्लोज होता है, जो कि रेगुलरली डिस्क्लोज होता है. ठीक है? अगर एक कंपनी का सेल्स अमेरिकाज में होता है, अमेरिकाज जब बोलते हैं तो वी आर टेकिंग द एंटायर अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोप में होता है, एशिया में होता है, अफ्रीकाज में होता है, ऐसे है, और उसपे अलग अलग चीजों का सेल होता है. देयर आर मे बी माने 500 प्रोडक्ट्स इट इज सेलिंग. तो जोश में तो आएगा, तो एक काम कर, एक्सेल शीट में 500 प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है और यहाँ अमेरिकाज, यूरोप, अफ्रीका सब लिखा हुआ है, और उसके बाद जाके इसको भरेंगे, देख क्या डिटेल्ड फोरकास्ट बनाए. भाई रुक जा. Are you understanding? आप ये नहीं कर पाओगे, it will become too wieldy. You have to look at the cost benefit of it. Regularly disclosed and one which actually hits the nail, which does substantial work, वही चीज forecast करना चाहिए. These are the principles of forecasting. ठीक है? तो principles of forecasting एक हो गया, forecast something which is regularly disclosed, or forecast and forecast in such a manner that it's parsimonious. What is it? Parsimonious. ठीक है? मैं ज्यादा एग्जाम्पल देने का बीच से बंद कर रहा था, पर ज्यादा दिया नहीं, बिकॉज एक एग्जाम्पल में डाइवर्ट किया तो आधा घंटा चला गया. अंडरस्टूड? तो बीच में टांगते हैं. एक नहीं है कि क्लास पे एग्जाम्पल ही बड़ा बड़ा लेते जा रहे हैं. लिखो प्लीज प्रिंसिपल्स वाला पार्ट. तो आप लोग लिख रहे हो प्रिंसिपल्स, मेरा फुल स्क्रीन रखो, अपने आप लिखेंगे. हाँ, प्रिंसिपल्स. तो प्रिंसिपल्स में नंबर 1, forecast objects should be those which are regularly disclosed, दूसरा, नंबर 2, forecast should be parsimonious. That is not unduly complicated. क्लास के साथ ड्राइव में और एक नोट शेयर होगा. उस नोट में ये दोनों पॉइंट जो लिखे हैं ना, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, उसका एग्जाम्पल दिया रहेगा, छोटा सा ही. तो इन केस यू कैन गेट द
कंफर्ट ऑफ एक बार शाम तक चेक कर ले कि ड्राइव में क्या अपलोड हुआ है, तो आपको दिखेगा फॉर्मल नोट्स के अंदर इन दोनों पॉइंट का एग्जाम्पल दिया रहेगा, एकदम इजीली रीडेबल एग्जाम्पल। यू लाइक इट, हाँ यार देख ये दिया हुआ, समझ गए? ओके, ये हो गया प्रिंसिपल्स। आगे मूव करें। फोरकास्ट ऑब्जेक्ट्स लिखो, फोरकास्ट ऑब्जेक्ट्स। फोरकास्ट ऑब्जेक्ट्स, फोरकास्ट ऑब्जेक्ट्स के आगे लिख दो व्हाट इज इट दैट यू विल फोरकास्ट, व्हाट इज इट दैट यू विल फोरकास्ट। ओके, लिसन केयरफुली, लिसन प्लीज। ये थोड़ा सा लोग अटक जाते हैं यहां पे, ठीक से बता दूं। रेवेन्यू कंपनी का लास्ट ईयर 10,000 करोड़ है, उसके पहले वाले साल का 9,600 करोड़ था, उसके पहले वाले साल का 9,000 करोड़ था, उसके पहले 8,700 था, एंड सो ऑन। मैं देखा पास्ट का क्या रेवेन्यू है, उसका कैल्शियम फीड किया सबसे पहला वाला रेवेन्यू को प्लस माइनस पीवी, लेटेस्ट को एफवी, नंबर ऑफ इयर्स, सीपीटी आई बाय वाई यानी ग्रोथ रेट क्या हुआ है, देखा एवरेज ग्रोथ रेट वाज 6.5%। व्हाट वाज इट? 6.5%। ठीक है। कंपनी को चेंजेस किया है प्रोडक्ट में, अभी मैंने वो भी स्टडी किया और मेरे को लगा उन चेंजेस की वजह से कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा पास्ट के मुकाबले। 6.5% एवरेज था ना, मेरे को लगता है 8.5% होगा, तो मैंने 8.5% नेक्स्ट ईयर का लगाया और रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर का आ गया 1000 प्लस 8.5%। मैं और डीपली बोल सकता था, आई हैव केप्ट इट लेयर वाइज थोड़ा सा हल्का। यहां पे मैंने क्या फोरकास्ट किया? रेवेन्यू। क्या फोरकास्ट किया? रेवेन्यू। स्टोरी चेंज। रेवेन्यू जो है उसमें मैंने P इंटू क्यू किया। क्या किया? P इंटू क्यू। कंपनी जो बेच रहा है क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, उसको एनालाइज किया लास्ट 4-5 ईयर्स में। इन्फ्लेशन क्या होने वाला है इस चीज का, तो प्राइस क्या होगा वो सोचा। क्वांटिटी किस रेट से बढ़ेगा वो सोचा। कंपनी का मार्केट शेयर क्वांटिटी वाइज क्या हो रहा है, और मैंने नेक्स्ट ईयर का P फोरकास्ट किया, Q फोरकास्ट किया, P इंटू क्यू से रेवेन्यू निकाला। ये यही पूछ रहा है LOS। ये बोल रहा है क्या फोरकास्ट करोगे भाई तुम, रेवेन्यू सीधा फोरकास्ट करोगे या रेवेन्यू के अंदर खोद के जो P इंटू क्यू है वो फोरकास्ट करोगे? डिड यू अंडरस्टैंड? बिकॉज जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं वो लोग सबको याद रहेगा इसके अंदर का पॉइंट्स, समझेगा कोई नहीं। वो बोलना चाह रहा है क्या करने चाह रहे हो तुम, रेवेन्यू को सीधा फोरकास्ट करोगे कि उसके अंदर घुस के उसका ड्राइवर को फोरकास्ट करोगे? समझ गए? राइट रॉन्ग का बात नहीं है, अभी इससे कौन सा करना चाहिए उसका बात नहीं आ रहा है, ये बात करें अपने बात क्या चीज का कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया अपना, we will forecast the drivers of line items. We will forecast the drivers of line items. Don't write right now, do not write. We will forecast the drivers of line items. Drivers of, ये line item क्या हुआ? Please imagine any PL account, balance sheet, cash flow statement. Please imagine उसमें sales दिया रहते हैं, उसके बाद material cost दिया रहता है, labor cost दिया रहता है, expenses दिया रहता है, सब कर कुरा के COGS दिया रहता है, GP दिया रहता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट, रेंट, कर कुरा के SG&A, क्या बोला? सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्या? सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये जो मेन आइटम दिए थे ना, रेवेन्यू, COGS, SGA, इनको बोलते हैं लाइन आइटम्स। क्या बोलते हैं इनको? लाइन आइटम। ये होते हैं जो मेन आइटम दिए रहते हैं। किसी का ज्यादा मन है, जैसे अगर तुमको जेन्युइनली लगता है, सुनना प्लीज, कि सर बिलीव मी मेरे को लगता है कि मैं मटेरियल कॉस्ट अगर अलग से फोरकास्ट करूं, लेबर कॉस्ट अलग से, तो COGS का बेटर फोरकास्ट आएगा। जेन्युइनली कसम खा के तुमको मन में लगता है कि तुम अगर मटेरियल कॉस्ट का अलग से करेगा तो तुम्हारा COGS का बेटर फोरकास्ट आएगा, तुम्हारे पास नॉलेज है, एबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, कंपनी का डिस्क्लोजर है, तो प्लीज तुम वो करो, मटेरियल कॉस्ट लेबर को अलग से। पर अदरवाइज तुम COGS को ही करो। किसको करो? COGS। तो तुम COGS को फोरकास्ट करने वाला है या उसके ड्राइवर्स के अंदर जाने वाला है? यू हैव टू डिसाइड। तो रेवेन्यू के लिए तो आई हैव सीन मोस्टली लिंक्डइन वाले लोग को छोड़ के, ओके, रेवेन्यू का फोरकास्ट जो है ना
वो ड्राइवर्स के हेल्प से करना चाहिए। किसके हेल्प से? ड्राइवर, बिकॉज रेवेन्यू इज द थिंग। सब चीज, पूरा फाइनेंशियल मॉडल रेवेन्यू पे बेस्ड है। अगर आपने रेवेन्यू का फोरकास्ट थोड़ा डिटेल में नहीं किया तो क्या किया? अपना जो क्लास था ना, कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, उसमें कितना चेप चेप के अपना फर्स्ट क्लास स्टार्टेड विद स्टारबक्स, याद है क्या? स्टारबक्स का हमने दोनों तरह से फोरकास्ट किया था। स्टारबक्स का बॉटम अप एंड टॉप डाउन। वो जो बॉटम अप एंड टॉप डाउन है वो उस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में है। ठीक है, और मजा आ जाएगा न्यू स्टूडेंट्स को भी। चल यार, उस जो बोल रहे थे फर्स्ट सेकंड क्लास करते हैं कि स्टारबक्स का अपने नंबर ऑफ स्टोर्स, फुटफॉल, सारा चीज देखा था अपने। ठीक है, तो हमने फोरकास्ट किए थे, कॉफी मार्केट फोरकास्ट किए थे क्या है। उसके बाद मैंने वो था ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट, कॉफी मार्केट क्या है, मार्केट शेयर क्या है स्टारबक्स का, वो था टॉप डाउन। बॉटम अप हो गया यहां से पी इंटू क्यू, कितना सारा स्टोर्स है, व्हाट इज द सेल्स पर स्टोर, दैट इज बॉटम अप। तो ड्राइवर्स के हेल्प से फोरकास्ट करना, और कुछ होता है ड्राइवर्स नहीं, हम सीधा लाइन आइटम फोरकास्ट करेंगे, सीधा लाइन आइटम। डिड यू अंडरस्टैंड? तीसरा सुनना, तो मैंने दो चीज बोला, फोरकास्ट या तो मैं ड्राइवर्स करूंगा, लाइन आइटम का ड्राइवर्स, और या मैं लाइन आइटम करूंगा। ठीक है, वो जेन्युइनली मेरे को सोचना चाहिए क्या ड्राइवर्स में जाने का दम मेरा है क्या? दम मतलब क्या मेरे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और कैपेसिटी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है क्या? जानबूझ के कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड में बोलूंगा। ठीक है, तो थर्ड फोरकास्ट ऑब्जेक्ट, हम लाइन आइटम भी नहीं करेंगे, हम लाइन आइटम भी नहीं करेंगे, हम कोई समरी आइटम करेंगे। क्या करेंगे? समरी आइटम। इसका बेस्ट फोरकास्ट है करंट एसेट। करंट एसेट का 2-3 पॉपुलर आइटम बोलते हैं। करंट एसेट में 2-3 पॉपुलर आइटम, कैश को छोड़ के, कैश हटा दो, इज इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स, प्रीपेड। तो आप इन्वेंट्री को इस तरह से फोरकास्ट कर सकते हो। सुनना क्या कि सर हमने देखा है कि इन्वेंट्री का जो डेज है ना, कंपनी में इन्वेंट्री का डेज वो 40 डेज होता है। कंपनी मेंटेन्स 40 डेज का इन्वेंट्री। कितना दिन का? 40 डेज का इन्वेंट्री। जिनके पास कैलसी है वो लोग आंसर देना प्लीज। क्वेश्चन पूछने वालों, जिनके पास कैलसी आंसर देना। कैलसी नहीं है तो फोन है, फोन पे कैलसी है। कैलसी नहीं है तो फोन है, फोन पे कैलसी है। ठीक है, तो एक कंपनी है जिसका मैंने एनालिसिस कर लिया, पास्ट का इंडस्ट्री देख लिया, मेरे को समझ में आया इसका 40 डेज का इन्वेंट्री पीरियड होगा। कितने दिन का? 40 डेज का इन्वेंट्री इसके गोडाउन में रहेगा। ये मेरा फोरकास्ट है, मेरे को बैलेंस शीट में इन्वेंट्री फोरकास्ट करना है। इस कंपनी का जो COGS है, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज इन्वेंट्री भी तो वो गुड्स ही होता है जो बचा हुआ है। COGS इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरे साल का फोरकास्ट आ चुका है PL में। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गोइंग टू बी 360 करोड़। कितना? 360 करोड़, या एक मिनट चेंज, 720 करोड़। 720 करोड़ पूरे साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 720 करोड़। ठीक है ना? 360 डेज इन ईयर मानना है, 360 डेज इन ईयर। तो उस केस में उस कंपनी का इन्वेंट्री कितना होगा? 720 करोड़ जो है वो COGS है, साल का होने वाला है, और 40 दिन का इन्वेंट्री कैरी करेगा। 40 दिन का, तो आपको केवल 40 दिन का 720 निकालना है। 720 का 40 डेज क्या होते हैं? 720 का 40 डेज। इस बहुत जन का आंसर आना चालू हो गया। COGS तो पूरे साल का हुआ ना, इन्वेंट्री 40 डेज का है, तो आपको बताना है अगर 720 पूरे साल का है तो 40 डेज का कितना है? 80 करोड़, है ना? ओके, इट इज 80 करोड़, बिकॉज मैंने फिगर सुंदर लिया था। आई डिलिबरेटली टुक 720 बिकॉज वो 360 से डिवाइड हो जाता है। समझ गए कि 360 डेज का सर 720 करोड़, तो 40 डेज का कितना? पीपल में लर्न फॉर्मूलाज फॉर इट, बट दोज हु गेट द फील फॉर इट दे नेवर फॉरगेट। देयर आर फॉर्मूलाज फॉर इट रिटन इन द बुक. It is simple na. COGS and inventory are same. COGS is a flow variable throughout the year. Inventory is a stock variable. I don't consider them to be different at all. तो COGS पूरे साल का है, इन्वेंट्री जो 40 दिन का है, एंड यू हैव द फॉर्मूला विथ यू कि 360 दिन का अगर 720 करोड़ है तो 40 दिन का कितना है? इट्स लाइक COGS into inventory period by 360 becomes a formula. COGS into inventory period divided by 360. समझ गए? 80 करोड़. तो ये जो अगर मैं इस तरह से निकालता हूं, इन्वेंट्री अलग से निकालता हूं, अकाउंट रिसीवेबल अलग से निकालता हूं, तो पहला दो तीन चीजें, एक मिनट सर लेट समझते हैं। इन्वेंट्री को या तो मैंने सीधा ग्रो करा दिया 10%,
ये हो गया फोरकास्टिंग लाइन आइटम, फोरकास्टिंग लाइन आइटम। मैंने इन्वेंट्री के डेज में गया, ड्राइवर डेज, और डेज के हेल्प से फोरकास्ट किया, ये हो गया ड्राइवर्स। क्या हो गया? ड्राइवर। मैंने इन्वेंट्री को फोरकास्ट नहीं किया, मैंने सीधा करंट एसेट फोरकास्ट कर दिया। क्या? करंट एसेट फोरकास्ट कर दिया जिसमें इन्वेंट्री मिला हुआ है। दिस इज समरी फोरकास्ट। व्हाट इज इट? समरी आइटम फोरकास्ट करना। 3 चीज बोल दिया अभी। एक है हम आइटम के ड्राइवर के हेल्प से आइटम फोरकास्ट करेंगे, दूसरा होता है हम आइटम सीधा फोरकास्ट करेंगे, तीसरा होता है हम आइटम भी नहीं करेंगे, हम आइटम्स का एग्रीगेट फोरकास्ट करेंगे। आइटम्स का एग्रीगेट, समरी मेजर, जैसे करंट एसेट फोरकास्ट करेंगे, डेटर्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? सर मैंने देखा है इस कंपनी में, से लेट्स टॉक अबाउट एनी कंपनी, से नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का इन्वेंट्री क्या होगा? ठीक है, बिकॉज क्या हो रहा है ना, पुराना जो आपने पढ़ ली है बीकॉम टीकॉम में हिन तेन, वो सारा बना दिया गया 1900s के बिजनेस के, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, WIP, यही अपने को सिखाया जाता है। अरे आजकल के बिजनेस में रॉ मटेरियल, WIP सब होता ही नहीं, सिखा रहे क्या हो? यू अंडरस्टैंडिंग? तो मतलब एवरीथिंग इज रिटन अबाउट द पास्ट। तो क्या होगा कि आजकल तो बिजनेस जिसमें रिसीवेबल होता ही नहीं है, पहले पैसा देते हैं अपने नेटफ्लिक्स को, उसका तो प्री रिसीव्ड होता है कि डेटर्स होता है। यानी कंपनी ऐसा होगा जिनमें इन्वेंट्री जरा सा है तो है, डेटर्स जरा सा है, और वो भी उसका सेल्स के साथ ठीक से रिलेशन नहीं है। पर करंट एसेट जो है ना, उसका सेल्स के साथ ज्यादा प्रेडिक्टेबल रिलेशन है। आई प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री, डेटर्स। आई फाउंड इट वाज हैपेजेड ऑल ओवर द प्लेस। सेल्स इज गोइंग अप, इन्वेंट्री इज कमिंग डाउन, सेल्स इज गोइंग डाउन, इन्वेंट्री इज गोइंग अप, बोथ आर गोइंग अप। ठीक है, तो इट्स मामूली सा। तो वहां पे देखा जाए तो आप पार्सिमोनियस नहीं हो, आप बुद्धि लगा रहे हो। अगर इतना छोटा सा आइटम में क्या करें, इससे बढ़िया करंट एसेट। And forecast the bucket, do not forecast the components of the bucket. Not that we are encouraging you, but that's the call you have to take. और वो कॉल के लिए प्रिंसिपल्स दिखा दिए, अंडरस्टूड? तो फोरकास्ट द बकेट, नॉट द आइटम। उसके पहले वाला फोरकास्ट द आइटम, उसके पहले वाला फोरकास्ट द ड्राइवर दैट ड्राइव्स द आइटम। 3 हो गया, 3 बोला मैंने। पहला ड्राइवर, दूसरा आइटम, तीसरा बकेट। पहला ड्राइवर, दूसरा आइटम, तीसरा बकेट। सब पर ये फोरकास्ट करें कैसे? प्राइस कैसे आएगा, क्वांटिटी कैसे आएगा, वो अप्रोचेज है। वो क्या है? वो अलग पॉइंट है। अभी बात है फोरकास्ट करना क्या है, फिर बात है फोरकास्ट करना कैसे है। कैसे बाद में आएगा, अभी क्या है का बात हो रहा है। ठीक है, लास्ट टू एंड द फोरकास्ट ऑब्जेक्ट चौथा होता है, सुनना प्लीज। एक कंपनी के पीएल में एक आइटम है ही नहीं, पर उसको फोरकास्ट करना है अपने को। क्यों करना है? बिकॉज कंपनी का जब मैंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ा ना, तो मैंने देखा कंपनी का एक लॉ सूट चल रहा है। बैलेंस शीट के नीचे कंटिजेंट लायबिलिटीज होते हैं ना, नाम सुना होगा फुटनोट्स में। तो कंपनी का एक बड़ा लॉ सूट चल रहा है, और वो लॉ सूट को मैंने ठीक से डिटेल से स्टडी किया। मेरा जो लीगल एनालिस्ट है अपने टीम में, जो लीगल, उसको ही बुलाया और वैसा देखा, तो ये पता चला ये लॉ सूट अगर उल्टा पुल्टा लग गया ना, तो इस पे 200-300 करोड़ का नुकसान हो सकता है कंपनी को। समझ गया? तो अगर ये हो सकता है नुकसान, मैं इसको कंसिडर ही नहीं करता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगा मेरा। तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वहां पे मेरे को इस आइटम को फोरकास्ट करना है। इस आइटम को बोलते हैं एड हॉक। क्या? एड हॉक आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर नॉट नॉर्मली देयर, but which I have understood there are some lawsuits, okay? वैसा कुछ आइटम, कुछ फॉरेक्स गेन या लॉस होने वाला है, ठीक है, पता चला है, तो वैसा आइटम को फोरकास्ट करना है। दैट्स कॉल्ड एड हॉक। व्हाट इज इट कॉल्ड? एड हॉक। देखा जाए तो वो सेल से कनेक्टेड नहीं है कंपनी का, बाकी सब चीज कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस से कनेक्टेड था, ये कुछ और ही तरह से करना है, तो इसको अलग कैटेगरी डाल दिया, एड हॉक फोरकास्ट। So there are 4 types of items you have to forecast. Either the drivers of the item or the bucket or ad hoc. This is forecast object. What is this? And you will have to take a call कि आप ये माने कौन से में आप ड्राइवर में जाओगे, कौन से में आप लाइन आइटम में जाओगे, कौन से में आप बकेट में जाओगे, और कौन कौन सा एड हॉक आइटम लोगे। ठीक है, तो ये आपको लिंक्डइन में नहीं मिलेगा कि जो उस तरह सोच के किया है। Because of which I was saying garbage in, garbage out. You should imagine yourself later on that you are not doing this thing. ये चीज आप अपने एनालिस्ट को बताए हो जो जूनियर एनालिस्ट है,
और वो रिसर्च करके वो प्रोवाइड कर रहा है, आप ऊपर का डिसीजन ले उसको गाइडेंस दे रहे हो, ठीक है। मतलब द अबिलिटी, द एस्पिरेशन इन फ्यूचर शुड बी दैट आई विल नॉट टच द एक्सेल शीट एट ऑल, नेवर, खासकर इन माई फ्यूचर करियर व्हेन आई एम इन माई 40s or 45, आई विल नॉट टच द एक्सेल शीट एट ऑल, ठीक है। बट यस, इनिशियली यू हैव टू, एंड देयरफॉर थिंग्स हैव टू बी लर्नड, बिकॉज यू विल बी द जूनियर एनालिस्ट वर्किंग, एंड इफ यू कैन प्रोवाइड योर पर्सपेक्टिव टू योर बॉस कि इस कारण से मेरे को ये लग रहा है, 2 मिनट में यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग अ पर्सपेक्टिव, others are providing sheets. Understood? Okay, let's write it down. Forecast objects. तो forecast objects में number 1, forecast the drivers of a line item. The drivers of a line item. Bracket, revenue equal to P into Q, revenue equal to P into Q. टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहे यहाँ पे, बिकॉज LOS नंबर B किसके बारे में, रेवेन्यू फोरकास्टिंग। और इनफैक्ट आप लोग को तो, अगर आप लोग फर्स्ट 2 क्लासेस वॉच कर लेते हो पास्ट एंड प्रेजेंट का, वो जो रेवेन्यू फोरकास्टिंग वाला LOS है उस पर अपने को टाइम नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो हो चुका चेप चेप के। याद है जिन लोगों ने किया था, मैंने हॉस्पिटल का फोरकास्ट किया था, हॉस्पिटल का, उसका ही फोरकास्ट किया हुआ अपना, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल का शायद किया था अपने, ठीक है। तो हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली गए थे करते समय। नेक्स्ट, नंबर 2, फोरकास्ट लाइन आइटम्स डायरेक्टली, लाइन आइटम्स डायरेक्टली, bracket, not the drivers, not the drivers. सीधा बताओ COGS कितना होगा सर, 14% ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली फोरकास्ट कर रहे हो, या सर 10% बढ़ेगा, डायरेक्टली फोरकास्ट कर रहे हो। अप्रोचेस अभी डिस्कस करेंगे अपने। तीसरा, थर्ड, फोरकास्ट समरी मेजर्स, फोरकास्ट समरी मेजर्स, summary measures like current asset instead of inventory comma AR etc, like current asset instead of inventory comma accounts receivable etc, current assets comma account receivable etc. नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट, फोरकास्ट एडहॉक आइटम्स, फोरकास्ट एडहॉक आइटम्स, ADHOC, एडहॉक आइटम्स सच एज लॉस फ्रॉम लॉसूट, लॉस फ्रॉम लॉसूट, कॉमा FX गेन और लॉस, FX गेन और लॉस एटसेट्रा। इन सब पे एक एक एग्जाम्पल दिया रहेगा इन द फॉर्मल नोट्स। टाइम बचाने के लिए एग्जाम्पल नहीं देना, बिकॉज समझ में तुम लोग को आ गया, तुम लोग को दिख रहा है, आई कैन सी फ्रॉम द फेसेस। बट क्या होता है, जरा सा एक एग्जाम्पल रहने से बाद में भी और ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। और इनफैक्ट क्या है ना, यही नोट्स अगर तुम फॉर एग्जाम्पल यही स्नैपशॉट लेके अगर तुम GPT में डालता और बोलता कि क्या आप एक एक पॉइंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, जिससे मेरे को समझ में आया, और हो सके तो न्यूमेरिकल दे देना, और बढ़िया, समझ गए। ओके, ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर, वरना मैं हड़बड़ी में फोरकास्ट अप्रोचेस करा दूंगा जो कराना नहीं चाहिए, ठीक है। सो आई टुक माई टाइम, आई थिंक द फर्स्ट हाफ एन आवर वेंट इनटू कॉन्टेक्स्ट, द नेक्स्ट हाफ एन आवर वेंट इनटू लेआउट एंड IHCL, एंड द नेक्स्ट हाफ एन आवर वेंट इनटू दिस डिस्कशन, ठीक है। तो ओके, वी कंटिन्यू दिस ऑन वेडनेसडे। जो लोग आज नए बैच में ज्वाइन किए होंगे ना, 22 जो ज्वाइन किए होंगे, एक बार आप लोग को अलग से मैसेज जाएगा जहाँ पे एक साथ, बिकॉज लाइव में ही बहुत सारे मेरे को दिख रहा है, तो वी विल हैव अ जूम सेशन सेपरेटली
to discuss out how do you move ahead. ठीक है ना? Most probably we'll do it for today evening or tomorrow morning. ठीक है ना? Yeah.